वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेट्स। आप सभी का केआईपी में स्वागत है। एंड लेट्स स्टार्ट टुडे आवर स्पेसिफिक वेबिनार्स। जितने भी पार्टिसिपेट्स व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, केआईपी आपका स्वागत करती है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू conduct a specific webinar on a new policies that is implemented by the Haryana governments, that is Make in Haryana Industrial Policies 2026. That is a great initiatives taken by the governments, particularly for the medium entrepreneurs that are going to boost up their business as a large enterprises, large projects, mega projects, ultra mega projects। एक ऐसी पॉलिसी जो हरियाणा में नए इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करती है। इफ यू आर बिलोंगिंग टू हरियाणा स्टेट और द आउटसाइड हरियाणा स्टेट्स एंड गोइंग टू प्लान इन्वेस्ट इन हरियाणा, then that policy give a great fundamental support to the new investors। ऐसे लोग जो हरियाणा में इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को लुकअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे प्रोविजंस हमारे गवर्नमेंट्स की जो ये पॉलिसीज है इसमें लाइन अप है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हरियाणा के ही लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही उनको बेनिफिट्स होगा। इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द आउटसाइड हरियाणा स्टेट्स, इवन दो इफ यू आर द आउटसाइड इंडिया कंट्रीज, यानी आप आउटसाइड बाहर के किसी देश से भी बिलोंग करते हैं, तो भी इस पॉलिसीज में ऐसे प्रोविजंस हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया गया है, तो काफ़ी अच्छे प्रोविजंस। उसके ऊपर इस पॉलिसीज का एक आउट फ्रेम्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू। हमारे साथ हमारे कंपनीज के टेक्निकल हेड मिस्टर विकास कपूर जी एंड श्री राजेश मेहता जी हैज आल्सो ज्वाइंड विद अस। दे विल डिस्क्राइब द डिटेल्स प्रोविजन ऑफ द सब्सिडीज and the incentive available in this policies। So let's start and going to move on our specific webinars. Webinar on Make in Haryana Industrial Policies 2026. How these policies boost up the investment opportunities and the subsidy benefit in Haryana. On that parts, KIP is going to share with the basics outframe, basics outline for these policies। KIP being as a corporate subsidy consultant providing their services since 2008 onwards, we are working particularly for the warehousing and logistics segments, large enterprises, MSME enterprises, agriculture-based projects, silo projects, animal husbandry projects. And our main objective to provide the right business modeling services with the right investment pattern so that our clientele can achieve maximum benefits, maximum fiscal incentive so that they can reduce their project cost and maximizing their profits. With that objects, KIP continuously serving their clientele throughout the India base, even the outside India base, and fulfillment of our objective to educate our investor, educate our entrepreneurs, because knowledge is power, and KIP working on that concept. That's why KIP has a unique name, KIP Knowledge is Power. We fulfillment of this objective, our main object to educate our prospective investor, entrepreneurs, particularly is in that series, we are moving on this great policies। So let's start some basics of the Haryana states, because this is the policy specifically focus on the Haryana states। हरियाणा स्टेट्स पूरे देश का 1.3 ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है, लेकिन जो कंट्रीब्यूट करता है नेशनल जीडीपी में, दैट इज गोइंग टू अप्रोक्सीमेट 3.6%। ओवरऑल पूरे देश का जो जीएसटी कलेक्शंस होता है उसमें भी हरियाणा 7.1% का कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडिया ओवरऑल जीएसटी कलेक्शंस में करता है। तो मीन्स टू से बीइंग एन इंडस्ट्रियल स्टेट्स, हरियाणा स्टेट की जो पोजीशन है दैट इज गोइंग टू वेरी डोमिनेंट पोजीशंस। हरियाणा जगह में छोटा है लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशंस अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल्स जो है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इंडस्ट्रियल्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, वो यहाँ का मेन फोकस है। और आप देख पाएंगे हरियाणा रैंक्ड एज ए टॉप अचीवर्स इन बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024। टॉप अचीवर्स हरियाणा को रैंक मिला है। ऐसे ही
फॉर द वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक सेगमेंट्स में हरियाणा एज रैंक्ड एज ए अचीवर पोजिशंस in logistic is across different states. If you are belonging to warehousing and logistics sector, transportation sectors, so that in that scenario, Haryana is also providing a good infrastructure, good facilitation to the investor, and ranked as a achievers in the as per the Leeds report 2024. Apart from this, Haryana also leading landlocked states as per the export index 2024 मीन्स टू से यहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को भी काफी अच्छा एक फैसिलिटेशंस लाइनअप है। हम यहाँ हरियाणा को एज ए इंडस्ट्रियल्स जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं आपको, और पूरे हरियाणा में अभी जो है अप्रोक्सीमेटली 13,18,000 का एमएसएमई यूनिट बेस है पूरे हरियाणा। अगर इनमें से हम बात करें तो 22,914 स्मॉल यूनिट्स हैं और 1756 यूनिट्स आर मीडियम एंटरप्राइजेज। ये एमएसएमई का लार्ज बेस indirectly give the big boost to the large and mega units, because this policy on which we are going to discuss with you predominantly frame for the large projects, large enterprises, mega project and the ultra mega projects, means to say which units which are not covered under the MSMEs, for that units this policy have the provisions. लेकिन जो एमएसएमई यूनिट का जो बेस हरियाणा में है वो इनडायरेक्टली लार्ज यूनिट्स को बहुत अच्छा फैसिलिटेशन करेगा, और जो 1756 यूनिट्स जो मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि ये भी जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे, और ये पॉलिसीज मैं आगे आपको शेयर भी करूंगा, नेक्स्ट फॉर 5 ईयर्स के लिए वैलिडेट है, तो बहुत अच्छा बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और जो फिजिकल इंसेंटिव्स अपॉर्चुनिटीज हैं वो मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी अवेलेबिलिटीज इस पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली आगे आने वाले समय में रहेगी। तो इफ यू आर ए मीडियम एंटरप्राइजेस देन आल्सो you need to take about this policies, need to understand about this policies. मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा इनटू वन ऑफ द इंडिया मोस्ट प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस। ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है पॉलिसीज का वो ये है कि हरियाणा को एज ए प्रेफर्ड करना मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ताकि जितना इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आए अच्छे से फैसिलिटेट्स हो, और हरियाणा में जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, फैसिलिटेशंस हैं, आपको स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स हैं, ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइन अप किया जाए। पॉलिसी जो पीरियड है, पॉलिसी विल बी रिमेन इफेक्टिव फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये बहुत अच्छा इसमें लाइनअप्स है कि अगले 5 साल तक इस पॉलिसीज के प्रोविजंस हैं। पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है नया इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, जो कि अप टू 5 लाख करोड़ होगा और विद 10 लाख न्यू जॉब्स हो। इसके साथ साथ हरियाणा का जो एनुअल एक्सपोर्ट है उसको डबल करना, ये पॉलिसीज का ऑब्जेक्ट भी रहेगा। तो इस पॉलिसीज के ऑब्जेक्ट ही ऐसे डिटरमाइंड्स हैं जिससे आगे का जो फेस है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लार्ज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। होस्ट टीम से मेरा रिक्वेस्ट है, जो ऑडियंस जुड़ी हुई है हमारी, वो प्लीज अपने आप को म्यूट रखे, अपना वीडियोस भी ऑफ रखे, सो दैट वी कैन हैव ए बेटर डिस्कशंस। एंड वन मोर थिंग्स आई वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस इज दैट आफ्टर दिस presentations we have a provision for one-to-one discussions also. If you have any queries, then our technical experts will share with the needful answer to you. So please mute yourself so that we can facilitate our presentation in the easy ways. Large capital investment promotions is the main objective of this policies, and the policy promote investments from large enterprises, mega project, ultra mega projects और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे, क्योंकि ये पॉलिसीज पहले हरियाणा में एमएसएमई यूनिट्स के लिए और अदर देन एमएसएमई यूनिट्स के लिए कॉमन पॉलिसी रहता था, अब गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली जो है एमएसएमई से जो अदर देन यूनिट्स हैं, जो लार्ज एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में है, चाहे वो लार्ज प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में है, मेगा प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में, उनके लिए सेपरेट पॉलिसी लॉन्च की है। तो दैट इज ए गुड इनिशिएटिव्स। और वन मोर गुड इनिशिएटिव्स फ्रेम दिस पॉलिसीज दैट द कैटेगरी ऑफ द एरियाज। आगे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपको बताए भी गए। पहले हरियाणा में
जो है ABCD क्लासिफिकेशन होता था अकॉर्डिंगली टू डिस्ट्रीब्यूट द सब्सिडी बेनिफिट्स। और प्राइमरली उसमें जो ब्लॉक ए में जो कैटेगरीज में एरियाज आते थे वहां पे सब्सिडी बहुत कम होता था और न के बराबर होता था। लेकिन नाउ गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड दिस डिस्ट्रिक्शंस और define the whole Haryana and four primarily focus area, that is the core areas, intermediate areas और the prime areas और prime focus areas। तो ये जो एरियाज हैं अकॉर्डिंगली इसमें आपको सब्सिडी बेनिफिट फ्रेम होंगे। मीन्स टू से in which areas your unit is going to set up or your expansions, accordingly that determine the subsidy benefits। तो ये बहुत अच्छा प्रोविजंस है। इसके साथ साथ इस पॉलिसीज में कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स के भी प्रोविजंस लाइन अप हैं जो कि इस प्रकार से, बाकी डिटेल्स में आगे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपको शेयर भी करेंगे। और one more things I want to share with our audience is that if you are going to set up any investments activity in Haryana and want to frame the subsidy eligibility, then there is a very good product initiated by the KIP, that is the subsidy viability reports। You can frame your subsidy viability report, that is a pure customized product from the KIPs। और जितने भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी के लिए आज स्पेसिफिक हम ये ऑफर भी रखेंगे इस वेबिनार्स में। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट हरियाणा में किसी भी टाइप का प्लान कर रहे हैं और यू वांट टू फ्रेम द सब्सिडी असेसमेंट, सब्सिडी एलिजिबिलिटीज, because subsidy viability report is a core factors that determines your investment patterns, your bankings, your own money, your sites locations, your employment, technical know. There are a lot of subsidy factors that determine the subsidy or fiscal incentives applicable on your project. So that facility is also available with the KIP. I will share after on webinar stages to you. So I am hearing sharing some specific incentive provision under this policy, that is कि यहाँ टोटल जो इन्वेस्टमेंट्स आपका होगा उसके ऊपर एक आपको हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स इंसेंटिव्स प्लान है, लेकिन वो मैक्सिमम जो है आपके सब्जेक्ट टू ए सेलिंग ऑफ 100% ऑफ द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मीन्स टू से जितना आप फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके 100% तक की सीलिंग इस पॉलिसीज में रहेगी। लेकिन बहुत अच्छे जो बेनिफिट्स हैं डिटेल्स में हमारी टीम आगे शेयर करेंगे आपके साथ। इस पॉलिसी में सबसे अच्छा पॉइंट है ये कि कैपिटल सब्सिडीज कवर हैं जो कि फास्ट ट्रैक कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस हैं। मीन्स टू से जितना जल्दी आप हरियाणा में अपना कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस लाइन अप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको कैपिटल सब्सिडीज के प्रोविजंस अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ स्पेशल बूस्टर हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनके लिए स्पेशल बेनिफिट्स हैं। नेट SC/ST के रिफंड्स के प्रोविजंस हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडीज हैं, इलेक्ट्रिक ड्यूटी रिम्बर्समेंट है, स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स हैं। R&D इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेशल वेटेज दिया गया है इस पॉलिसीज में। यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करते हैं उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। कैपेटिव रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स यदि आप लाइन अप करते हैं, कोई सोलर पैनल आप सेटअप करते हैं या कोई ऐसा कोई यूनिट आप सेटअप करते हैं जो आपके प्रोजेक्ट के एनर्जी डिमांड्स को मीट आउट करता है, तो उसके लिए भी इंसेंटिव है। यानी कैपेटिव रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट आर आल्सो एलिजिबल अंडर दिस पॉलिसीज। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यूनिट्स जेडएलजी अगर आप लाइन अप करते हैं तो भी इसमें अच्छे प्रोविजंस लाइन अप किए गए हैं। और बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि कोई भी नया यूनिट्स जो अप्लीकेबिलिटीज है, जो ये पॉलिसीज है इज एप्लीकेबल ऑन न्यू यूनिट्स or any existing units which are going to undertake any expansions, diversification at the same location or the different locations। आप नया यूनिट सेटअप कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग में एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं सेम लोकेशंस पे या नए लोकेशंस पे, तो ऐसे काफी प्रोविजंस इस पॉलिसीज में अवेलेबल्स हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट भी एप्लीकेबल्स रहेगी। स्टैंड अलोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स will have the option to avail the subsidy or incentive under this policy। तो बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेगा प्रोजेक्ट होते हैं, उनको अपने R&D सेटअप करने होते हैं। तो स्टैंड अलोन R&D facilities if you are going to line up for your business needs, then you can also avail the incentive under this policies। So that is a good options। One more very attractive provision under this policy is that if you are moving, shifting, relocating your manufacturing फैसिलिटी फ्रॉम आउटसाइड हरियाणा, अगर आप हरियाणा से बाहर से बिलोंग करते हैं और अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स
हरियाणा में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वन टाइम स्पोर्ट्स जिसमें 5 से 10 करोड़ तक के प्रोविजंस हैं, ऐसी यूनिट्स के भी लाइनअप्स हैं। तो बहुत अच्छे पॉलिसीज के प्रोविजंस हैं। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स अगले सेशन में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ पूरी पॉलिसीज में कुछ थ्रस्ट सेक्टर डोमिनेंट्स जो है लाइनअप किए गए हैं, कि थ्रस्ट सेक्टर स्पेसिफिक्स हैं। अगर आप इन सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो ये पॉलिसीज के प्रोविजन बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। और सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन भी हरियाणा गवर्नमेंट ने लाइनअप किए हैं। लेकिन जो थ्रस्ट सेक्टर है जिस पे गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस है, इफ यू आर बिलोंगिंग टू थ्रस्ट सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, देन डेफिनेटली देर आर मैनी मैनी मोर इंसेंटिव्स आर अवेलेबल इन हरियाणा स्टेट। पहला जो थ्रस्ट सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर बेस है, एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड अलाइड सर्विसेज, दैट इज नॉमिनेट एज ए थ्रस्ट सेक्टर बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। मीन्स टू से, यदि आप एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं और हरियाणा में करना चाह रहे हैं, तो ये थ्रस्ट सेक्टर है, गवर्नमेंट यहाँ इस सेक्टर को ज्यादा फैसिलिटेशंस दे रहा है। ऐसे टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं, अपैरल सेक्टर्स हैं, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट एंड लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर इज आल्सो लाइन अप एज ए थ्रस्ट सेक्टर्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी, बहुत अच्छा एक नया इराज है इन्वेस्टमेंट्स का। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वो भी थ्रस्ट सेक्टर में नॉमिनेट्स हैं। सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस, chemicals and petrochemicals, leather and footwears, toys and sports equipments, defense and aerospace, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग, बहुत अच्छा एरिया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग का। काफी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इसमें लाइन अप हो रही हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के हैं, रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मटेरियल्स के प्रोजेक्ट्स हैं। These sectors are lined up as a thrust sectors by these policies. So if you are planning your investment in this sector, specifically thrust sector specific provisions also applicable for your sectors investments. तो बहुत अच्छे से थ्रस्ट सेक्टर का कवरेज है, काफी इंसेंटिव प्लान है। नाउ जितने भी हमारे यहाँ पे ऑडियंस जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए स्पेसिफिक ऑफर भी है, और ये आफ्टर सेशंस में आपके साथ शेयर भी करूंगा। पॉलिसी स्पेसिफिक्स हमारी गाइडलाइंस हैं, नई गाइड बुक्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटी का मेंबरशिप्स हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो है सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट स्पेसिफिक भी ऑफर रहेगा आफ्टर सेशंस। एंडिंग सेशंस में आपके साथ ये बोनस पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो यदि आप हरियाणा में कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस प्लान कर रहे हैं, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो जरूर KIP से कनेक्ट कीजिएगा। नाउ वी आर मूविंग टू आवर टेक्निकल सेशंस एक्सपर्ट्स। यस सर। ओके ओके, ग्रेट वेलकम विकास जी। विकास जी आपके साथ अभी शेयर करेंगे इस पॉलिसीज के कुछ की कंपोनेंट्स। उसके बाद हमारे अंदर जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं मिस्टर राजेश मेहता जी, वो आपको इस पॉलिसीज के जो सब्सिडीज बेनिफिट्स हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा। थैंक यू सर। सो अब हम इस पॉलिसी में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशंस को कवर करेंगे कि आप जिस भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो लैंड जो है आपका एरिया में कवर, जिस भी लैंड को आप प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे कि उस पॉलिसी में कवर होगी या नहीं होगी, या फिर आपकी जो सी एंटिटी है उसमें आप कितनी इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप इसमें एलिजिबल हो जाए सब्सिडी लेने के लिए। तो सबसे राइट। पहले जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये सब्सिडी है जो सी लार्ज यूनिट, मेगा और अल्ट्रा मेगा के लिए ही है, जैसे जितेंद्र सर ने बताया आपको। तो हम सबसे पहले लार्ज यूनिट की डेफिनेशन कवर करेंगे। लार्ज यूनिट जो सा MSME के अकॉर्डिंग है, जनरली उसमें अगर आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से ज्यादा करते हैं, या फिर आपकी टर्नओवर 500 करोड़ से एक्सीड होती है, तभी वो लार्ज यूनिट की डेफिनेशन में कवर होती है। बट इस पॉलिसी में जो सा एक नया क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ की करते हैं कम से कम, साथ में 500 एम्प्लॉय को आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं 1 साल के अंदर, तो आपकी जो सी यूनिट है वो लार्ज यूनिट में हो जाएगी। यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ नहीं लगानी, आपको सिर्फ 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट लगाने से आप लार्ज यूनिट की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे, और आपको लार्ज यूनिट के इंसेंटिव सारे मिलेंगे इसमें पॉलिसी में। ऐसे मेगा यूनिट के लिए जो सा अलग अलग डिफाइन किया गया है, जैसे हरियाणा को 4 सेक्टर में बांटा बांटा गया है: प्राइम, फोकस एरिया, सब प्राइम एरिया, इंटरमीडिएट एरिया और कोर एरिया। इसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स है हर जगह की। जैसे प्राइम एरिया में अगर आपकी यूनिट फॉल करती है तो आपको 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगानी होगी।
सब प्राइम में आपको 500 करोड़ की, इंटरमीडिएट में 600 करोड़ की और कोर एरिया में 700 करोड़ की। बट इसमें भी हरियाणा गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है, जिसमें अगर आप किसी भी एरिया में 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, साथ में 1250 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं उसमें, तो आप मेगा प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाए। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो सी है 400 की जगह सिर्फ आपको 125 करोड़ की लगानी है मेगा पॉलिसी में फॉल आउट होने के लिए। स्ट्रेस अल्ट्रा मेगा मेगा प्रोजेक्ट, इसमें जो सा है गवर्नमेंट ने इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है। इसमें आपको आपके एरिया के अकॉर्डिंग, अगर आप यूनिट फॉल कर रही है प्राइम या फोकस एरिया में आपकी यूनिट फॉल कर रही है, तो आपको 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगानी है। सब प्राइम एरिया में आपकी 3000 करोड़ की हो जाएगी, इंटरमीडिएट एरिया में 4500 करोड़ और कोर एरिया में 6000 करोड़। नेक्स्ट हम कवर करेंगे सर इसमें इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप अब आपने डेफिनेशन समझ ली कि हमारी यूनिट्स लार्ज में फॉल होगी, मेगा में फॉल होगी, अल्ट्रा मेगा में फॉल होगी, अब हम किस टाइप की उसमें मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या सर्विस करेंगे कि हम इस पॉलिसी में फॉल आउट हो जाए। तो इस पॉलिसी में फॉल होने के लिए आपको सबसे पहले आपकी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए उसमें, या फिर प्रोसेसिंग होनी चाहिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम जो वर्क कह देते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट सारी आपने करी, प्रोडक्ट आप कोई परचेज नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे के लिए जो वर्क कर रहे हैं उस यूनिट के लिए, तो वो यूनिट्स भी इसमें फॉल आउट हो। प्लस में गवर्नमेंट ने इसमें 4 सर्विस सेक्टर और कवर किए हैं इस यूनिट के लिए, जिसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये 4 सर्विस टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं आप, और आप लार्ज या मेगा यूनिट में फॉल आउट कर रहे हैं तो आप इस सब्सिडी का बेनिफिट ले सकते हैं इस यूनिट में। प्लस में कमेंसमेंट विंडो, आपकी जो सी इन्वेस्टमेंट्स है, इस जो सी पॉलिसी है 26 मई 2026 की डेट है इसकी। इस डेट के बाद आप कमर्शियल प्रोडक्शन में आने चाहिए, यानी कि हरियाणा में जो सा कहते हैं कि फर्स्ट सेल बिल जो सा है आपका, वो इसके बाद कटना चाहिए आपका, तभी आप यूनिट आपकी यूनिट है जो सी इस सब्सिडी में एलिजिबल होंगे आप। और ये सब्सिडी जो सी एमएसएमई के लिए नहीं है, सिर्फ इसमें आपकी लार्ज मेगा और अल्ट्रा मेगा यूनिट सी फॉल आउट करेगी। अप्लाई बिफोर स्टार्ट। हरियाणा में क्या था कि पहले ये जब आप यूनिट लगा रहे हैं तो आपको यूनिट लगाने के बाद 3 महीने का टाइम दिया जाता था कैपिटल सब्सिडी अप्लाई करने के लिए। बट ये इस पॉलिसी में आपको कमर्शियल प्रोडक्शन में आने से पहले आपको अपनी यूनिट स्टार्ट करनी, कमर्शियल प्रोडक्शन में आने से पहले आपको एप्लीकेशन लगानी है सब्सिडी के लिए। तो ओके अभी जो हमने अंडरस्टैंड किया कि अगर आपकी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या ये 4 सर्विस सेक्टर में कवर हो रही है, और इस पॉलिसी के आने के बाद अपना फर्स्ट सेल बिल काट रहे हैं, और आप लार्ज मेगा या अल्ट्रा की डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाए। विकास जी, विशाल दिस साइड एक छोटी सी क्वेरी थी। सर आपका जो स्लाइड सेशन के बाद हाँ ले लेंगे सर क्वेश्चन आंसर आपके। विशाल जी, हाँ प्लीज सर, थोड़ा सा हम सेशन के एंड में रखेंगे सर क्वेश्चन एंड आंसर। प्लीज सर गिव योर काइंड सपोर्ट सर। विकास प्लीज कंटिन्यू। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपनी नई यूनिट लगा रहे हैं तो उसमें आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट वो आपकी एलिजिबल होगी, मतलब कि इसमें कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट काउंट होगी ताकि आप उस पर सब्सिडी ले पाए। तो इसमें 2 डेफिनेशंस है, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट एफसीआई एंड एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर। एफसीआई जो सा है, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक लैंड का है। एफसीआई में आपकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, आपकी बाउंड्री वॉल और ऑफिस, वर्क मैनेजमेंट, आर&डी, लैब, ये सारी कवर होगी आपकी। और इलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो सा, उसमें लैंड काउंट नहीं होगी, यानी कि इलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड को छोड़ के उसी पे ही आपको इंसेंटिव मिलेगा, जो 15%, 20%, 25% गवर्नमेंट दे रही है, वो इलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ही आपको मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट है जो सी आपको ड्यूरिंग द पॉलिसी करनी है कि 26 मई 2026 के बाद आपने जो भी इन्वेस्टमेंट लगाई उसके ऊपर आप एलिजिबल हो जाएंगे। प्लस में कई बार क्या होता है कि लार्ज यूनिट जब लग रही है, 125 करोड़ या आप 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें से हमने 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी और हमारी यूनिट जो सी है रनिंग में आ गई, हमने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया,
तो वो उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे 1 साल और दिया है लार्ज यूनिट के लिए, कि मान लो आपने 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने यूनिट स्टार्ट कर दी, और उसके बाद 20 करोड़ जोन से है आपको विद इन 1 ईयर अगर आप लगा लेते हो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने के, तो आपको इंसेंटिव जोन सा पूरी पे मिलेगा। और मेगा और अल्ट्रा मेगा के लिए ये जो सा 1 साल का क्राइटेरिया वो 3 साल का कर दी। प्लस में अगर कोई ऐसी यूनिट्स है जिसने हमारा अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, मतलब कि जिसने लैंड प्रोक्योर कर ली हो, या कोई अपना वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले लिया हो, और उसके बाद ये पॉलिसी आई है, तो उस यूनिट्स को भी इसमें कवर किया गया है, कि वेरी उसको हम आगे भी समझेंगे। उसके लिए क्या है कि एक 1 ईयर का पीरियड आपको दिया गया, प्रायर पीरियड, कि यानी कि 26 मई 2025 के बाद जो से आपने इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट सारी इसमें कवर हो जाएगी। यानी 1 साल पहले का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इसमें कवरेबल वो हो भी जाएगा। इसमें काउंट हो जाएगा। राइट राइट राइट। सर हमारा एक्सपेंशन या एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट, तो इसमें क्या है कि हमारा, कि कई बार क्वेश्चन आता है कि हम मीडियम यूनिट है या स्मॉल यूनिट है, और हम अपना एक्सपेंशन करके हम लार्ज यूनिट में कवर हो जाए, तो वो चीज इसमें कवर नहीं है। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग ही लार्ज मेगा और अल्ट्रा मेगा के लिए ही है। अगर आप इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं एफसीआई का 50% से ज्यादा, तो आप इसमें कवर हो जाएंगे। या फिर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट 25% से ज्यादा करते हैं और 125 करोड़ का हो जाता है आपका, तो आप इसमें कवर हो जाएंगे। एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझे कि मान लो कि आपका एफसीआई आज की डेट में 300 करोड़ का है, और आप उसमें 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉल आउट हो जाएंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट मान लो 600 करोड़ का है, और उसमें 50% आप इन्वेस्टमेंट आपका 300 करोड़ बनता है, लेकिन आप उसमें 125 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो आपका सॉरी 150 करोड़ का कर देते हैं आप 25% का, और वो 125 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो आप इस यूनिट इसमें कवर हो जाएंगे एक्सपेंशन में। ठीक है। इसमें जो सा एक्सपेंशन है आपको विद इन अपना वन टाइम ही मिलेगा पॉलिसी में, ड्यूरिंग द पॉलिसी 5 साल में सिर्फ एक बार ही आप एक्सपेंशन प्लान कर सकते हैं। और इसमें कमर्शियल प्रोडक्शन जो सा है आपका एक्सपेंशन के बाद इसी पॉलिसी के अंदर ही 5 ईयर के अंदर ही होना चाहिए। और आपको जो सा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपको अलग से मेंटेन करने पड़ेंगे, जीएसटी नंबर आपको अलग से लेना पड़ेगा। राइट राइट। सेक्टर पे इसमें जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि इसमें 4 सेक्टर कवर है, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म एंड R&D। तो टूरिज्म के लिए इसमें स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि सिर्फ फर्स्ट 10 यूनिट्स ही इसमें कवर होंगे। अगर आप टूरिज्म सेक्टर में या होटल बना रहे हैं, कोई रिजॉर्ट बना रहे हैं, थीम पार्क या वाटर पार्क बना रहे हैं इन लार्ज एंटरप्राइजेज, तो आपको डिसीजन इसमें जल्दी लेना होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट 10 यूनिट्स ही कवर करेंगे हरियाणा गवर्नमेंट इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो डिपिंग, नो डबल डिपिंग। मीन्स कि अगर आपने इस पॉलिसी में कोई सब्सिडी ले ली है, तो आप हरियाणा गवर्नमेंट की किसी दूसरी पॉलिसी में सब्सिडी नहीं ले सकते हैं, या आपने किसी दूसरी पॉलिसी में सब्सिडी ले ली है तो आप इस पॉलिसी में आप सब्सिडी नहीं ले सकते हैं। ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट। इसमें जो सा हरियाणा ने कवर किया है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप कोई यूनिट अपनी स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन वो कमर्शियल प्रोडक्शन उसका नहीं हुआ है, तो उस यूनिट से भी इसमें कवर हो जाएगी। बट आपको इसमें जो सा अपना कमर्शियल प्रोडक्शन है, ये जैसे नीचे दिया गया है कि लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 2 ईयर ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दिस पॉलिसी, कि आपको 2 ईयर के अंदर अंदर अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तभी आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट जो सी है जिसपे आप रनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन अभी तक कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, वो इसमें कवर हो सकेगी। और मेगा और अल्ट्रा मेगा के लिए ये जो से टाइम लिमिट से ये 3 ईयर्स है। ओवरऑल कैप है जो सी इंसेंटिव की, जो सी आप हरियाणा गवर्नमेंट से लोगे या सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी फॉर्म में, सब्सिडी के फॉर्म में, रिम्बर्समेंट के फॉर्म में, ग्रांट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो आपका 100% ऑफ एफसीआई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी जो सी ये स्कीम है वो ड्राफ्ट स्कीम आई है, लेकिन इसमें 3 महीने का टाइम दिया गया है, यानी कि 25 अगस्त 2026 तक
इसकी जो सी ऑपरेशन गाइडलाइंस है वो भी इशू कर देगी हरियाणा गवर्नमेंट। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि आपका जो सा एरिया है जहाँ पे आप यूनिट लगाना चाह रहे हो वो किस एरिया में कवर होगा। जैसे हरियाणा में पहले A B C D 4 ब्लॉक थे, तो अभी हरियाणा ने अपने आप को एरिया में कवर कर दिया है। जैसे प्राइम या फोकस एरिया, सब प्राइम एरिया, इंटरमीडिएट एरिया एंड कोर एरिया। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइम और फोकस एरिया वो हमारा ब्लॉक डी है और कोर एरिया हमारा ब्लॉक ए है। तो प्राइम और फोकस एरिया जो सा है, DIC किसी भी एरिया को इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जोन घोषित कर सकता है। तो वो जो सा है एरिया वो प्राइम और फोकस एरिया की डेफिनेशन में आ जाएगा। अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, तो इसकी उम्मीद यही है कि अगस्त 2026 तक ये सारी नोटिफिकेशन इशू हो जाएगी और उस अकॉर्डिंग आपका प्राइम और फोकस एरिया डिफाइन हो सके। तो सबसे ज्यादा जो सा इंसेंटिव है वो प्राइम और फोकस एरिया में ही मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी में सब प्राइम एरिया। प्राइम एरिया के बाद सेकंड कैटेगरी में यानी कि C ब्लॉक जो सा है वो यही है, सब प्राइम एरिया। इसमें और प्राइम एरिया में सिर्फ 5 से 10% का डिफरेंस है आपका सब्सिडी में। इसमें जो सा हरियाणा का सबसे ज्यादा एरिया कवर होगा वो सब प्राइम एरिया में कवर होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा NOC जोन है जो सा TCP ने NOC जोन बना रखे हैं प्राइम एरिया की डेफिनेशन में कवर होंगे आपके। सेकंड, कोई भी एरिया को इंडस्ट्रियल जोन अगर TCP या अर्बन लोकल बॉडी घोषित कर देता है कि ये इंडस्ट्रियल जोन है, तो वो भी आपका सब प्राइम एरिया की डेफिनेशन में कवर होगा। या कोई भी आपके वेकेंट प्लॉट या अनअलोटेड प्लॉट है, मीन्स कि आपने उसकी पेमेंट्स कर दी है लेकिन आपको अभी तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है या फिर आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है, और वो प्लॉट फॉल आउट होता है IMT में, HSIDC में, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क में या इंडस्ट्रियल कॉलोनी में जो ऑथराइज हुई है TCP के द्वारा। तो वो सारे जो से प्लॉट्स है वो सब एरिया की डेफिनेशन में कवर होंगे आपके। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट एरिया। ये इसको हम ब्लॉक B कह सकते हैं हरियाणा का। इसमें जो सा भी लैंड पार्सल है आपका, यानी कि आपकी सिटी के बाहर जो सी लैंड है और TCP एरिया से पहले की लैंड है, वो आपका इस एरिया में कवर होगा, इंटरमीडिएट एरिया में। या फिर कोई भी ऐसा प्लॉट जो आपको लॉट हो चुका है, यानी कि जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है या आपको अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है, वो फॉल आउट होता है आपका IMT में, HSIDC में, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क में या इंडस्ट्रियल कॉलोनीज में, तो वो आपका इंटरमीडिएट एरिया की डेफिनेशन में कवर होगा। नेक्स्ट है कोर एरिया। इसमें कोई भी एरिया जो म्युनिसिपल लिमिट की एरिया में कवर होता है, अर्बन लोकल बॉडी की म्युनिसिपल लिमिट्स में कवर हो रहा है, उस एरिया को कोर एरिया कहा जाएगा। और ये हमारा ब्लॉक ए है हरियाणा का, जो सा ब्लॉक ए होता था। तो हरियाणा में अब पहले तो कई बार क्या होता था, COD में ज्यादा इंसेंटिव दे देते थे, A और B में नहीं देते थे, तो हर एरिया में इंसेंटिव दिया गया है हरियाणा। तो इसमें हमने समझा कि आपका लार्ज और मेगा यूनिट या अल्ट्रा मेगा यूनिट की डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से इसमें बिजनेसेस कवर होंगे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज कौन से कवर होंगे और कौन कौन सा एरिया कवर होगा। तो अभी नेक्स्ट। Thank you, Vikas. Great thanks for sharing the basics concept. अभी तक हमने समझा कि हरियाणा के जो 4 प्राइमरी फोकस एरिया हैं कि कोर एरिया, इंटरमीडिएट एरियाज, आपका सब प्राइम एरियाज एंड द प्राइम फोकस एरियाज। विकास आप अनम्यूट कर लीजिएगा और अपना वो कर लीजिएगा, वीडियोज ऑफ कर लीजिएगा। जी जी। तो एरिया क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल आपके सब्सिडी बेनिफिट्स पर रहता है, और सब्सिडी और फिजिकल इंसेंटिव्स की जो क्वांटम्स हैं, जो कैलकुलेशंस है, वो आपके एरिया के हिसाब से होता है। बहुत अच्छे से विकास सर ने हमें समझाया। नाउ वी आर मूविंग द कोर एस्पेक्ट और ऑफ वेबिनार्स कि बेनिफिट तो मिलेगा लेकिन कितना मिलेगा और कौन सी स्कीम में कितना बेनिफिट और किस लोकेशंस पे कितना और किस यूनिट के लिए कितना। Means to say, what will be the eligibility of the subsidy benefit as per your locations, as per your units, as per your investment criteria, as per your employment criteria। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं
जिससे आपके सब्सिडी का क्वांटम डिटरमाइंस होता है। तो नाउ आई रिक्वेस्टेड टू इनवाइट आवर टेक्निकल एड मिस्टर राजेश मेहता जी, प्लीज आप आइएगा और हमारे ऑडियंस को शेयर कीजिएगा कि कैसे कैसे सब्सिडी बेनिफिट्स आप प्लान कर सकते हैं। ओवर टू राजेश मेहता जी, वेलकम सर। Thank you, Jitendra, and welcome to the all participants. This is a very good program, and moreover, you all people are very contributors to the Haryana and seeking the investments in the Haryana. So I welcome all you on behalf of the KIP. The objective of the next 40 minutes I will take to give the financial strategies to maximize incentives. Dear gentlemen, let's have an understanding about that incentive always provided in the scheme of the government of Haryana or any other government. प्रत्येक गवर्नमेंट की स्कीम में इंसेंटिव्स होते हैं. It all depends upon the consultant and the entrepreneurs, not only on the consultants. It is also depend upon the entrepreneur, you people, कि वहां से मिल के कि उसको कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके, कि आपने इंसेंटिव को बड़ा करना है, उसका डिसीजन लेना है. तो डिसीजन मेकिंग जो विंडो है वहीं से शुरू हो जाती है व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट टू सेट अप एन प्रोजेक्ट इन वन सेगमेंट. तो हम यहाँ बात करेंगे 9 इंसेंटिव्स की जो कि मेक इन हरियाणा पॉलिसी में एलिजिबल हैं. आई विल टेक वन बाय वन. पहले हम उनका क्वांटम जानेंगे, साथ साथ बीच में हर एक इंसेंटिव पे एक दो चीजों पे बात करेंगे कि उस इंसेंटिव को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, किस तरीके से, क्या प्लानिंग एलिमेंट्स की जरूरत होगी, कैसे आपने विंडो अपनी ओपन करनी है. तो हम उनको ऊपरगत बात करेंगे कैसे वन बाय वन. तो जस्ट आई एम टेकिंग द इंसेंटिव बैक. इस आप विंडो को देखें. विकास मूव ऑन द मूव द नेक्स्ट विंडो showing the all the 9 incentive for the SC/ST reimbursement, capital subsidy. Please move to the next window. Move from next from this window, the slide number 3. There is an detailing about the So there is an first incentive about the net SC/ST reimbursement. The another incentive capital subsidy. विकास इससे नेक्स्ट पे है जिसपे समरी है. प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, दिस इज द इंसेंटिव. तो दिस इज एन स्लाइड having in a detailing about the summary of the 9 incentive optimization framework. Just have an introduction, a brief introduction जो हम 30-40 मिनट्स में कवर करेंगे कि क्या 9 इंसेंटिव्स हैं जो आपके हैं, जिनके ऊपर हम डिस्कशंस करने वाले हैं, जिसकी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के ऊपर हम वर्कआउट करने वाले हैं. जस्ट टेकिंग द नेम्स. क्या 9 इंसेंटिव्स हैं जो कि हमें मिलेंगे, उनकी कैप क्या रहेगी, कोर एरिया के अंतर्गत मैक्सिमम कैप क्या होगी, आपके इंटरमीडिएट एरिया में कैप क्या होगी, आपके प्राइम एरिया में कैप क्या होगी, सब प्राइम एरिया में कैप क्या होगी, और उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या होगी कि कैसे उसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है. तो देखिए, पहला इंसेंटिव जस्ट अभी हम नेम लेते हैं. एक इंसेंटिव आपको मिलेगा SC/ST की रिम्बर्समेंट का. तो ये जो इंसेंटिव है स्टेट गवर्नमेंट की, जो GST आप पे कर रहे हैं, इसका फायदा उन यूनिट्स को मिलेगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो अपना एंड प्रोजेक्ट है उसको हरियाणा में सेल करेंगे, और हरियाणा में जो सेल करेंगे उसके अंतर्गत हरियाणा गवर्नमेंट को हरियाणा का GST देंगे, नेट SC/ST. इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे. आप एक बार टाइटल पे देखिएगा, 70% तक बेनिफिट मिल सकता है और 12 सालों तक मिल सकता है, एक सब्सटेंशियली लाइक एन इंडेक्स पेज. सेकेंड देखिए, कैपिटल सब्सिडी इज एन अनदर इंसेंटिव वी कैन गेट इट, जो कि इंसेंटिव नंबर 2 है, इस पे बात करेंगे. स्टाम्प ड्यूटी रिम्बर्समेंट इंसेंटिव, ये भी आपका 100% तक मिल सकता है जो आपने लैंड परचेज की है या आप प्लान कर रहे हैं परचेज करने के लिए, पर डिपेंड करेगा कौन से जोन में है, कितना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे. इंसेंटिव नंबर अगर हम 4 पे देखेंगे तो इंसेंटिव अगर देखेंगे तो एक्सपोर्ट के इंसेंटिव है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के इंसेंटिव है, R&D के इंसेंटिव हैं, या आपके ग्रीनिंग इनिशिएटिव्स हैं कि कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर इंसेंटिव मिलेगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे. और इसके साथ हम थ्रस्ट सेक्टर के एसेंशियल इंसेंटिव से बात करेंगे. पेटेंट के जो कमर्शलाइजेशन के हैं उन इंसेंटिव पे बात करेंगे. तो ये 9 इंसेंटिव्स की टेबल है. नाउ वी आर मूविंग टू द वन बाय वन ऑफ द ईच इंसेंटिव. उस इंसेंटिव पे हम मूव करते हैं. तो जस्ट आई एम टेकिंग द फर्स्ट इंसेंटिव ऑन द SC/ST
net SGST. It is net SGST reimbursement. So first understand about the what is the net SGST in order to have that the net SGST reimbursement. Please show the slide net SGST reimbursement. Try to understand what is the meaning of the net SGST. There is a very much confusion about some entrepreneurs की क्या SGST जब होगा उसमें क्या इनपुट है एडजस्ट करने के बाद होगा क्या बिना इनपुट एडजस्ट किए होगा। देखिए मान लीजिए अगर आपने आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लार्ज यूनिट है, आपने टर्नओवर किया से 100 करोड़ का टर्नओवर किया, आपका मोर देन 500 करोड़ टर्नओवर से 600 करोड़ का टर्नओवर हुआ। 600 करोड़ के टर्नओवर पे आपने एक टर्नओवर है, एक टर्नओवर से 300 करोड़ का टर्नओवर है वो आपने हरियाणा में किया, उसके उपरगत आपने SGST आपका निकला से एग्जांपल 27 CR का आपका SGST निकला, पर आपके पास SGST जो निकला उसके रिलेटेड जो इनपुट पड़ा हुआ है वो 20 CR का पड़ा हुआ है। तो जो डेफिनेशन है दैट इज वेरी मच क्लियर कि जब हम बात कर रहे हैं नेट SGST की तो जो इनपुट है इनपुट एडजस्ट करने के बाद अगर आपका SGST 27 CR है परंतु उसी से रिलेटेड SGST से रिलेटेड जो कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट पड़ा हुआ है वो एडजस्ट करने के बाद जो 7 CR का आपने SGST कैश में भरा वो अमाउंट आपका एलिजिबल अमाउंट की कैटेगरी के लिए आएगा कि हाँ जी ये आपने SGST भर दिया। अब आपका यूनिट किस एरिया में है उसके अकॉर्डिंगली आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये जो इसकी ब्रैकेट है, अब ये देखिए इसकी ब्रैकेट 20 से लेकर 70% तक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका लैंड का डिसीजंस, आप लैंड अगर आपने फोकस एरिया में ली हुई है और वो 70% SGST वापस मिल सकता है। आप इस एग्जांपल को समझिए कि मान लीजिए आपने 7 करोड़ है, 7 करोड़ आपने SGST भरा, अगर आपने लैंड और बिल्डिंग प्राइम या फोकस एरिया में बनाई है जहां गवर्नमेंट का फोकस एरिया है तो आपको 7 करोड़ जो SGST पे किया उसके ऊपर 4.90 करोड़ पे आप ये माने चलो हमें मिल रहे हैं, वापस मिल रहे हैं। टेन्योर देखो 7 से लेकर 12 साल तक, मतलब अगर हम कैलकुलेशंस करें 5 करोड़ भी मान के चलें तब भी 10 साल भी एवरेज मान के चलें तो 50 करोड़ रुपया तो हमने SGST का ही वापस ले लिया। आप एक बात को समझिएगा, काफी सारे एंटरप्रेन्योर को यहां थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये जो SGST का इंसेंटिव है इसका GST डिपार्टमेंट से कोई लेना देना है क्या नहीं है। आई एम वेरी मच क्लियर दैट दिस इंसेंटिव इज प्योरली बाय द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। दिस हैज नथिंग टू डू विद GST डिपार्टमेंट। जिस तरह GST डिपार्टमेंट को एक सर्टिफिकेट देना है इस चीज का, भैया इतना कैश लेदर के अंतर्गत आपने SGST भरा, इसका आपका ना तो GST की स्कूटनी से कोई लिंक है ना GST की फाइलिंग से कोई लिंक है, सिर्फ इतना ही लिंक है कि वहां से एक स्टेटमेंट आती है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास इंसेंटिव अप्लाई होता है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। आप इस बात से देखिए कि फर्क कहां पड़ रहा है। फर्क यहां पड़ रहा है कि आपने यूनिट सेटअप कहां पर की, आपने फोकस एरिया के अंदर यूनिट सेटअप की तो आपको 5 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिल रहा है। 7 करोड़ के ऊपर अगर आपने कैश के अंतर्गत SGST पे किया गया, अगर आपके फोकस एरिया में नहीं है कोर एरिया में वो इंसेंटिव 30% का है। इसका मतलब क्या हुआ, एक साल के पीछे ही 40% का फर्क है। अगर 7 करोड़ का SGST आपका पेड है तो आप मानिए चलिए उसका 40% अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 3 करोड़ क्या अप्रोक्सीमेटली पर ईयर का फर्क आ रहा है। तो 10 साल के अंदर 30 करोड़ का फर्क आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लैंड परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पहले इस कैलकुलेशन को एक एक्सेल पे सिनेरियो पे बनवा लीजिए ताकि कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि सब्सिडी गेन का डायरेक्टली आपके ROI पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ता है। अगर आप एक किसी भी इन्वेस्टर को, आप एक लार्ज एंटरप्राइज हैं, कल आप शेयर इशू करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, आपके अंदर अगर फॉर्म को इक्विटी आनी है, उसने इन्वेस्ट करना है, उसको आपको प्रेजेंटेशन देनी है, इन सब बातों का इस बात पे बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर आपने कोई फंडिंग लेनी है आउट ऑफ इंडिया, आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, उसके ऊपर हम ROI निकालते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, क्यूमुलेटिव IRR ये होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतनी होगी, परंतु उसको कैलकुलेट करते हुए अगर आपने सब्सिडी की कैलकुलेशंस के इंपैक्ट को, मेक इन हरियाणा की पॉलिसी के इंपैक्ट को, प्राइम फोकस के इंपैक्ट को, इंटरमीडिएट के इंपैक्ट को कंसिडर नहीं किया है तो आप उस चीज को कंसिडर करिएगा, डेफिनेटली करिएगा, क्योंकि इट विल इफेक्ट कि सब्सिडी की जो कैलकुलेशन है वो आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को फर्क पड़ेगी। इट इज नॉट फॉर द 1 ईयर, क्योंकि SGST का इंसेंटिव है, एक लंबा इंसेंटिव है। आप देखिए ये इंसेंटिव 7 to 12 ईयर्स के लिए आएगा और लार्ज के लिए 7 साल कह रहा है, मेगा के लिए 10 साल कह रहा है, कस्टमाइज पैकेज के लिए जो है 12 साल कह रहा है। यहां तो फर्क पड़ेगा पड़ेगा। एक और मेजर इंपॉर्टेंट चीज, ये पहली बार हुआ जो हरियाणा गवर्नमेंट डाला है, आप गवर्नमेंट की इंटेंशन समझिएगा
एक जब हम जीएसटी की सेल करते हैं, जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, तो एक क्लॉज आता है कि आपने जो सेल की B2B की क्या B2C की। मतलब B2C मींस दैट बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B मैंने बिजनेस टू बिजनेस, कि आपने अपना माल बनाया, आपने माल बना के डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हैं, थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू बेच रहे हैं, रिटेल के थ्रू बेच रहे हैं, डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को अगर आप बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करें, लार्ज में करें, और आप अगर एंड कंज्यूमर को डायरेक्टली बेच रहे हैं, डायरेक्टली अगर बेच रहे हैं B2C, अगर B2C का सेल आपका 50% से ज्यादा है, तो आपको सब्सिडी का परसेंटेज फोकस एरिया में 70% मिल रहा है। देखिए, अगर आपका B2C का परसेंटेज 50% से कम है, मतलब आपने B2C का यहां पर पोर्शन आएगा हरियाणा के अंतर्गत, हरियाणा में जितनी सेल की, हरियाणा में सेल की आपने 27 करोड़, उसमें आपने B2C की मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्टली आपने कंज्यूमर को सेल की, उसका रेफरेंस कहां से निकल के आएगा? उसका रेफरेंस आपके जीएसटी रिकॉर्ड से निकल गया, जीएसटी रिटर्नों से निकल के आएगा। उनके लिए डिपार्टमेंट से जो सर्टिफिकेट आएगा, अभी इसकी ऑपरेशनल गाइडलाइन आएंगी, उस सर्टिफिकेट में भी एक क्राइटेरिया आएगा कि जहां पर लिखा होगा कि आपने जो सेल हुई है बिजनेस टू कंज्यूमर की जो सेल हुई है ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर कितनी है, और बिजनेस टू बिजनेस की डेफिनेशन की जो सेल है वो कितनी है। उन दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग आएंगी, और आपका जो इंसेंटिव निकलेगा कि जो SGST स्कीम के अंदर वो ऐसा निकलेगा, जितनी सेल अगर आपकी B2C की 50% से ज्यादा है, अगर आप फोकस एरिया में काम करते हैं, 7 करोड़ का अगर आपका SGST पेड है, तो आपका 4.90 करोड़ का क्लेम बन रहा है। अगर आपका B2C का जो सेल है वो 50% से कम है, तो आपका 7 करोड़ का आपका 60% क्लेम बन रहा है। मतलब 17 लाख रुपए का फर्क इसी चीज से पड़ता है कि अगर फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है और आपका B2C का सेल से 1 करोड़ से कम रह रहा है, और आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ये जो अगर सेल मेरा B2C का 50% से नीचे चला जाएगा, तो मुझे 17 लाख का नुकसान होगा। अगर आपको पास राइट स्ट्रेटजी यही है कि आप अपनी उन कंडीशंस को, उन सिचुएशंस को मतलब पहले डिटरमाइन कीजिए, पहले वर्कआउट कीजिए अपनी टीम के साथ, अपने कंसल्टेंट के साथ, ताकि टाइमली हम उस चीज का एक्शन ले पाए कि हम अपनी सब्सिडी को मैक्सिमाइज कर सकें। तो इसमें 2 टेक अवेज हैं। एक तो टेक अवे ये है कि बिजनेस टू कंज्यूमर का आपका डिटर्मिनेशन होगा। दूसरा टेक अवे ये है कि आपका जो SCST है उसके अंतर्गत नेट SCST जो आप कंसिडर होगा, और जो आपका पेड वर्जन है उसी के ऊपर इंसेंटिव मिलेगा। तो इसका एक बार हम थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को भी एक बार देखते हैं। वही बातें हमने इसके ऊपर लिखी हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी पे इसी की। तो इसमें हमें ट्रैक करना है समय समय के ऊपरगत, मतलब हमारा B2C का सेल कितना हुआ है, ताकि आपको पूरा पूरा 10 परसेंटेज पॉइंट का फर्क पड़ रहा है। अगर आप को जो फोकस एरिया के अंतर्गत लैंड चूज करते हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। देखिए 20 से 30%, जैसे हम बात कर रहे थे 60 से 70% का फर्क पड़ रहा है, इसका हमें फर्क पड़ रहा है। तो ये 2 टेक अवे हैं जो कि SGST इंसेंटिव पे हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न मैं लूंगा उन एंटरप्रेन्योर्स का जिनका माल हरियाणा में नहीं बिकता, परंतु आउट ऑफ हरियाणा ज्यादा बिकता है। हमारे पास काफी ऐसे केसेस आते हैं। उन केसेस में उनको अपनी स्ट्रेटेजी को एक्सरसाइज करना पड़ेगा बिफोर, कि कैसे वो हरियाणा में सेल कर सकते हैं, हरियाणा की सेल को बढ़ा सकते हैं। वो 1 to 1 कस्टमाइज उसके ऊपर अगर हम पूरे केस को समझने के बाद अपनी सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट में फर्दर ऐड अपन दे सकते हैं। We'll take the questions later on. Let's move to the next subsidy, Vikas. It's a capital subsidy. Just a moment. The second incentive, Make in Haryana capital subsidy. That's a very good incentive. जो इंसेंटिव कैपिटल सब्सिडी का, अब देखिए सरकार कैपिटल सब्सिडी जब दे रही है तो कैपिटल सब्सिडी देते हुए काफी सारी कंडीशंस भी लगाती है, और ये एक बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है इसके अंतर्गत। मतलब गवर्नमेंट के माइंडसेट में पिछले सालों में आप सबने कहीं ना कहीं इंसेंटिव लिया होगा। पहले कैपिटल सब्सिडी का माइंडसेट होता था कि आपने एक प्रोजेक्ट लगाया, से आपने प्रोजेक्ट लगाया 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, आपने जो भी प्रोजेक्ट लगाया गवर्नमेंट वाज इंटेंडेड कि वन टाइम इंसेंटिव दे दो, कि 20% दे दो, 15% इंसेंटिव दे दो, वन टाइम एकदम प्रोजेक्ट लगाया आपने, कैपेक्स लगाया, उसका इंसेंटिव अगले 1-2 सालों में आपका आ जाता ना। आज भी कुछ स्कीमों में है, तो दिस इज एन फर्स्ट टाइम दैट गवर्नमेंट इज चेंजिंग द माइंड। गवर्नमेंट चेंजिंग माइंड कह रहा है कि जो आपको सब्सिडी मिलेगा, जो आप कैपेक्स लगाएंगे, ये किस्तों में मिलेगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा।
ताकि जो यूनिट्स हैं कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगी, उनको हर साल सब्सिडी क्लेम करना पड़ेगा, उनका डाटा जाएगा, उनकी बैलेंस शीटें जाएंगी। हाँ, सब्सिडी अगर आपका पहले साल सैंक्शन हो जाएगा तो उसकी किस्तें मिलेंगी। तो पहली बात तो आप ये समझिएगा कि कैपिटल सब्सिडी आपको प्रोजेक्ट पे एक साथ नहीं मिलेगी। जो भी हम आपका अमाउंट मिलेगा, जो भी आपकी कैटेगरी में आप एलिजिबल आ रहे हैं, कैटेगरी समझिए कि अगर लार्ज यूनिट्स, और इस चीज को समझिए, बार बार गवर्नमेंट ये वर्ड यूज कर रही है, फास्ट ट्रैक कमेंसमेंट। अब फास्ट ट्रैक कमेंसमेंट की अभी इसकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस आनी है, परंतु फास्ट ट्रैक कमेंसमेंट में ये आईपीएल एड स्कीम है कि इसमें कमेंसमेंट से पहले एप्लीकेशन अपलोड होनी है, अभी फॉर्म आने हैं। पर मोटा मोटा गवर्नमेंट कहाँ कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि आपको सीएलयू मिल गया लैंड का, उसके बाद आपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आपको एनओसी मिलेगी, कोई भी आप कंसेंट टू एस्टेब्लिश बोलते हैं, अगर आप जिस लैंड के ऊपर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो अगर सीटीबी कंसेंट टू एस्टेब्लिश आपको हरियाणा गवर्नमेंट से, हरियाणा पोल्यूशन गवर्नमेंट से मिल गया, तो आप माने चलिए वो एक मोटी मोटी आपकी ब्रैकेट शुरू हो गई। मतलब किसके लिए, आपको यूनिट पूरा करना है 2 साल के दौरान। अगर आपका वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपका सीटीबी आ गया, परंतु आपने मौके के ऊपर ईट पत्थर या कंस्ट्रक्शन या सिविल वर्क लेट शुरू किया, और आप 2 साल के ट्रैक पीरियड के अंतर्गत अगर आप इसको नहीं पूरा कर पाए तो आपका इंसेंटिव कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको अगर इंसेंटिव को प्लान आउट करना है तो आपको इंसेंटिव को प्लान आउट नहीं करना सर, आपका इंसेंटिव डिपेंड करता है आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ टाई अप क्या हुआ है, उसने क्या कहा है, यहाँ जी कितने टाइम में सिविल वर्क पूरा कर देगा। आपका मैकेनिकल का जो मशीनरी आप ले रहे हैं उनके वेंडर से आपके टाई अप क्या हैं, उनकी टाइमलाइंस क्या हैं कि वो कब तक मशीनरी डिस्पैच करेंगे, मशीनरी की टेस्टिंग कब तक हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सब्सिडी सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि सब्सिडी का जो कंसल्टेंट है वो जो जल्दी जल्दी काम कर देगा, नहीं, ये आप पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें बाकी लोग भी टीम है, आपका कॉन्ट्रैक्टर भी इन्वॉल्व हो गया, सिविल कंस्ट्रक्शन वाला, आपका जो बंदा स्टैट्यूटरी परमिशंस ले रहा है वो भी इन्वॉल्व हो गया, आपकी मशीनों की मतलब टेस्टिंग वाला बंदा भी इन्वॉल्व हो गया, मशीनों की प्रोक्योरमेंट की जो टीम है, उनके सेटअप की टीम है, ओवरऑल वो सब चीजें टाइम पे होंगी। टाइम को एक बहुत बड़ा इसेंस फैक्टर दे दिया गया है। अगर आप टाइम का ट्रैक मिस कर गए, आपका सब्सिडी का क्वांटम है कट जाएगा। ये बड़ा क्लियर कट गवर्नमेंट ने सब्सिडी स्कीम की फॉर्मेशन में, पॉलिसी में पहले डाले हैं, तो देखिए इनकी इंप्लीमेंटेशन पक्का होगी, क्योंकि ये सब चीजें ऑनलाइन चढ़ेंगी। डॉक्यूमेंट पे कंसेंट टू एस्टेब्लिश आ गया, बिल्डिंग अप्रूवल का आपको ओसी मिल गया, आपको कंसेंट टू ऑपरेट मिल गया, कुछ ऐसी टाइमलाइंस क्लियर कट ऑपरेशनल गाइडलाइंस में आएंगी जिन ब्रैकेट्स में आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। अगर 2 साल के अंतर्गत वो लार्ज यूनिट पूरा कर देती है तो इंसेंटिव है आपका, आपको मिलेगा फोकस एरिया के अंतर्गत या प्राइम एरिया के अंतर्गत 20%, सब प्राइम जैसे बात की कि मैक्सिमम एरिया सब प्राइम में आएंगे, क्योंकि अभी विकास जी ने बताया, जितेंद्र जी ने बताया कि जो फोकस एरिया उन पे गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आना है, तो जितने भी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल एरिया लग रही हैं तो मोटा मोटा 15% पे आएंगी एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। अगर आप देखिए कि अगर आप एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल आप इसके अंतर्गत 200 करोड़ का एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आपकी एफसीआई है 200 करोड़ की आ रही है, तो उसका आपका प्लांट मशीनरी में कसमें बिल्डिंग में तो आपका 15% मतलब 30 करोड़ रुपए कम से कम आपको मोटा इंसेंटिव मिलेगा कैपिटल सब्सिडी का इस स्कीम के अंतर्गत। और ये इंसेंटिव आपका डिपेंड करता है कि आपका जो यूनिट है किस लोकेशन में लग रहा है और किस टाइमलाइन के अंतर्गत आप पूरा कर रहे हैं। अगर आपकी कम से कम 2 साल में नहीं हो पाई देखिए, और उसमें आपके 3 साल लग गए 2 साल के बजाय, तो आप देखिए अगर आप सब प्राइम में हैं तो पहले 15% इंसेंटिव मिल रहा था, तो अब इंसेंटिव सीधा सीधा होने का मतलब ये है कि अगर आपका जो इंसेंटिव एलिजिबल कैपेक्स एक्सपेंडिचर आपका 200 करोड़ था, 200 करोड़ के ऊपर पहले इंसेंटिव आपको 15% होके 30 करोड़ मिल रहा था, तो 200 करोड़ का 5% का मतलब मान के चलो मोटा मोटा आपको 10 करोड़ का इंसेंटिव कम हो गया। मतलब आपका 200 करोड़ का सिर्फ 10% मतलब 20 करोड़ का इंसेंटिव रह गया।
पहले 15 करोड़ का इंसेंटिव, 15% का मतलब 30 करोड़ का इंसेंटिव था। इसका मतलब 10 करोड़ रुपए का सब्सिडी का फर्क इस बात से नहीं पड़ रहा कि आपका यूनिट कहां सेटअप है, 10 करोड़ का सब्सिडी का फर्क इस बात से पड़ रहा है कि आपने सब्सिडी का जो कमिटमेंट है 2 साल के बजाय 3 साल में पूरा किया। तो देखिए कितने टाइमलाइन और प्लानिंग की इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू समझिएगा। और मतलब जितना अच्छा हम अपना होमवर्क करेंगे, जितना अच्छा आर्किटेक्चर हम बनाएंगे सब्सिडी अवेल करने का, जितने अच्छे हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे बनाने के साथ साथ तो टाइमलाइन को पूरा करेंगे, टाइमलाइन से ही आप 10 करोड़ का सब्सिडी बढ़ा सकते हैं। तो हाउ बिग इज द रोल ऑफ द सब्सिडी कंसल्टेंट, हाउ बिग रोल इज ऑफ योर डिसीजन मेकिंग एंड द प्लानिंग, दैट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। तो इस बात को अच्छी तरह समझिएगा कि किस तरीके से कैपिटल सब्सिडी को मैक्सिमाइज किया जा सकता है बाय प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अगर मेगा यूनिट्स हैं तो अगर उनके लिए पीरियड दिया गया है 4 इयर्स का, मिरर द लार्ज यूनिट 2 ईयर प्लस में 5 ईयर मिरर, कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स दिए गए हैं कि आप इनको वर्कआउट करके उन्हीं टाइम फ्रेम्स को जो कि कस्टमाइज होंगे आपके अकॉर्डिंगली 2 साल की और ऑपरेशनल गाइडलाइंस को कंसिडर करके, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा। तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। एक बात हमने समझी, किस्तों के अंदर हमें इंसेंटिव मिलेगा। हमें दूसरा हमने ये बात समझी कि इंसेंटिव हमें एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमारा फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट से कोई लिंक नहीं है, उसमें गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे विकास जी ने बताया एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो एलिजिबल निकल के आएगा उसके अंतर्गत हमें मैक्सिमम 20% मिल सकता है, ठीक है। और वो जो इंसेंटिव है हमें 10 साल तक मिलेगा। तो देखिए ये हमने कैपिटल सब्सिडी पे एक ग्लैंस किया, थोड़ा समय का अभाव है तो वो 9 इंसेंटिव है, हमारा आज का ऑब्जेक्टिव एक ओवरव्यू देना है, तो इसलिए हम मूव करते हैं विकास जी थर्ड इंसेंटिव पे। प्लीज प्लीज मूव द स्लाइड टू आवर थर्ड इंसेंटिव वी हैव डिस्कस एंड रीड द, दैट इज कॉल्ड द स्टाम्प ड्यूटी रिइंबर्समेंट इंसेंटिव। देखिए स्टाम्प ड्यूटी रिइंबर्समेंट इंसेंटिव बड़ा इंपॉर्टेंट इंसेंटिव है, क्योंकि आज के टाइम पीरियड में जो स्टाम्प ड्यूटी अगर अच्छा आप एक लैंड परचेज करें 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ आ रही है, क्योंकि अगर आप कहीं अच्छे बड़े एरिया में 30 35 40 करोड़ की लैंड परचेज करते हैं, कहीं एक बल्कि लैंड ले रहे हैं 10 15 किले ले रहे हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी का अमाउंट ही 2 3 करोड़ रुपए आ जाता है। तो ये एक ऐसा इंसेंटिव है जो कि बड़ा वनीला इंसेंटिव है, क्योंकि देखिए इसके अंतर्गत हम इतना इंसेंटिव पे काम करते हैं, सबसे कम डॉक्यूमेंट स्टाम्प ड्यूटी इंसेंटिव में ही लगते हैं, क्योंकि आपका स्टाम्प ड्यूटी की रजिस्ट्री की वैल्यू लगेगी, परंतु फिर भी कई लोग इसको लेने से वंचित हो जाते हैं। सिर्फ एक क्राइटेरिया का ध्यान नहीं रखा जाता, वो क्या नहीं ध्यान रखा जाता, टाइमलाइंस का, कि इसकी पहली लाइन ये कहती है न्यू यूनिट मस्ट कमेंस कमर्शियल प्रोडक्शन विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज या लीज ऑफ लैंड। मान लीजिए आपने एक लैंड परचेज की, उसकी 2 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी दे दी, रजिस्ट्री होगी, फिर आप सोचने लग गए कि नहीं जी अब प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, फिर आपने प्रोजेक्ट को डिले कर दिया, फिर किसी कारण से डिले हो गया, फिर किसी कारण से डिले हो गया, फिर किसी कारण से डिले हो गया। अगर डिले इतना एक्यूमुलेटेड हो गया कि जिस डेट पे आपने लैंड की रजिस्ट्री कराई है उसके 5 साल के अंदर अंदर वहां पर आपकी यूनिट कमिटमेंट में नहीं आई, 2 साल तो आपको ये पॉलिसी दे रही है कमिटमेंट के बाद भी, 2 2.5 साल 3 साल या 3 साल 4 साल लेट हो गए आप, या बिल्कुल नुक्कड़ पे आ गए, आपको डेडलाइन का नहीं पता, तो आपका 2 करोड़ का जो इंसेंटिव है वो फॉरफिट हो जाएगा, टाइमलाइन में लैप्स हो जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क पड़ रहा है इस चीज का, टाइमलाइंस का, कि कैसे हम इंसेंटिव को क्लेम करें तो ही क्वांटम होगा। अगर उसकी टाइमलाइन थोड़ी मिस हो गई आपका क्वांटम खत्म हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग देखिए एरिया फिर भी फोकस कर रहा है, 75% सब प्राइम में मिल रहा है, प्राइम में 100% मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपके सब प्राइम में लैंड है 2 करोड़ का आपने स्टाम्प ड्यूटी पे किया तो आपको 1.5 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपने बात समझनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो लैंड है आपकी जिस डेट को परचेज करें उसके विद इन 5 इयर्स आपको कमिटमेंट करना है। अगर आप अपना सब्सिडी का जो कंपोनेंट है स्टाम्प ड्यूटी का मैक्सिमम क्लेम करना चाहते हैं तो इस टाइमलाइन को हमें ख्याल रखना है, ठीक है। थैंक यू। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, next incentive number 4, that is called the employment generation subsidy. That's a very very good, very very attractive। सरकार का माइंडसेट चेंज हो गया है और अब गवर्नमेंट जो इंसेंटिव दे रही थी, पहले भी ये इंसेंटिव हीप के अंदर भी रहा है, 48,000 रुपए मिलते हैं एक एम्प्लॉई को, और अभी रिसेंटली मतलब आपके साथ एक न्यूज शेयर करूंगा, रिसेंटली ईपीएफ एक्ट में चेंजेस हुए हैं, आज से 3 4 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है कि ईपीएफ में सिर्फ ओनली 1800 रुपए ही जमा कराने हैं। तो अभी काफी सारे चैलेंजेस से कई जगह
ईपीएफ के अंतर्गत मतलब एम्प्लॉयमेंट की संख्या कम रहती थी, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कोई भी इंसेंटिव है ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हो। अभी विकास जी ने भी आपको बताया कि देखिए अगर आपने रोजगार दे दिया 1250 लोगों को रोजगार दे दिया आपने, तो आपके लिए लार्ज की मतलब आपने रोजगार दिया 500 लोगों को, तो लार्ज की जो कैप है आपके लिए 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से ही आप लार्ज यूनिट में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने एम्प्लॉइज हैं उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्प्लॉइज को, हरियाणा के एम्प्लॉइज को अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू प्रोसेस में आपके पास ऑप्शंस हैं, दोनों इक्वली कैपेबल बंदे हैं, तो आप प्रेफरेंस दीजिए हरियाणा को। अगर आप हरियाणा में इंडस्ट्री लगा रहे हैं, साथ में आपको आपकी टीम में अकाउंट्स में एक बंदे को डेडिकेटली जो कि आपका ईपीएफ का बंदा देखता है उसको आपके कंसल्टेंट के साथ लगाना है। ये वर्कआउट करने के लिए कहीं आपके एलिजिबल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम या ज्यादा कम ना हो जाएं दो डिजायर्ड से। देखिए इसके अंदर सबसे पहले देखिए कैप, देखिए कैप तो आपको आ रही है मिनिमम सब्सिडी की 48,000 में मिलेगा एक एम्प्लॉय का, ठीक है। अब इसकी पीरियड की देखिए, पीरियड की कैप कहां पर आ रही है, आपको मिलेगा 10 ईयर्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ कमर्शियल इंसेंटिव। तो आप ये देखिए कि अगर आपके ने मतलब रोजगार दिया फॉर एग्जांपल 500 लोगों को और उसके अंदर से हरियाणा के 250 लोग आपके रोजगार के अंतर्गत स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल आ जाते हैं, तो अगर 250 लोग रोजगार में एलिजिबल आ रहे हैं स्कीम को और एक बंदे की मोटा मोटा 50,000 भी आपको मिल रहा है, तो सो बिग इज द अमाउंट गोज अवे, कि कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है जो आपको हर साल क्लेम करना है। तो इट इज एन बिग फिगर जो कि कहीं ना कहीं आपके सब कैलकुलेशंस को हटाती है कि अगर 250 लोगों के ऊपर आपको 50,000 रुपये पर साल मिल रहे हैं, तो ये आपका अमाउंट क्वांटम में आ जाएगा 1,25,00,000 रुपए। और 10 साल के अंदर अगर आप देख लें तो 12.5 करोड़ रुपए का इंसेंटिव तो आपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर दे दिया। अगर आपके 250 लोग आ जाते हैं, काफी सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर वर्कफोर्स ज्यादा होती है, फिर आपने अगर मान लीजिए रोजगार के अंतर्गत लोगों को हायर किया, एक HK एरन हरियाणा कौशल रोजगार निगम है वहां से अगर आपने कुछ लिया तो आपको एक एडिशनल इंसेंटिव मिल जाएगा। तो इंसेंटिव कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है कि 15% अगर हरियाणा की लोकल फोर्स है, ये सब चीजें एक कस्टमाइज एडवाइस की चीजें हैं। अभी आप एक ओवरव्यू में समझिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इंसेंटिव भी 12.5 करोड़ प्लस जा सकता है। सो बिग इज द इंसेंटिव ब्रैकेट, बट कंडीशनली आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, आपकी ईपीएफ की फाइलिंग प्रॉपर है, आपके स्कीम की गाइडलाइंस प्रॉपर है, टाइम पे है, टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन है। टाइम नहीं फॉलो हुआ, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो नहीं हुए, इंसेंटिव ड्रास्टिकली इन करोड़ ऑफ रुपीज में बी कट डेफिनेटली। तो दिस इज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी वेरी मच अट्रैक्टिव फॉर द इंसेंटिव। Please move to the incentive number 5. This is called the R&D infrastructure incentive। जैसे जितेंद्र जी ने शुरू में जिक्र किया था कि काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लार्ज यूनिट्स हैं जिनका एक R&D सेटअप होता है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के लिए, रिसर्च के लिए, न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशंस के लिए। ये जितने भी इस टाइप के इंसेंटिव्स हैं रिसर्च से रिलेटेड, उनमें सभी इंसेंटिव में एक कॉमन कंडीशन ऑलमोस्ट रहता है, वो दैट इज दैट रिसर्च शुड बी रजिस्टर्ड विद द DSIR, कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है जिसके पास आपका वो यूनिट है रिसर्च के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका वो यूनिट वो इंडिपेंडेंट यूनिट भी हो सकता है लार्ज यूनिट का, कि आपके एक लार्ज यूनिट है, आपने एक अलग से उसका एक ब्रांच खोल लिया और उसमें आपने उसको DSIR में रजिस्टर करा लिया, तो इंसेंटिव की कैप देखिए 50% एलिजिबल कॉस्ट का इंसेंटिव मिलेगा। और ये कैप आपके R&D के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है कि अगर आपका लार्ज का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 10 करोड़ की कैप है, अगर आप मेगा का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 25 करोड़ की कैप है, अगर आपका अल्ट्रा मेगा का है तो 50 करोड़ की कैप है। तो इसकी पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट्स में होगी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी बनानी है कि जो रिसर्च के ऊपर यदि इंसेंटिव मिल रहा है उसको आपका रिसर्च के ऊपर जो कैपेक्स हो रहा है उस कैपेक्स को अलग कर सकते हैं हम। मान लीजिए आपने टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर का 200 करोड़ लगाने हैं और सिर्फ 10 करोड़ ही लग रहे हैं रिसर्च, क्योंकि कैपिटल सब्सिडी 20% है और रिसर्च की सब्सिडी 50% है, तो उसकी प्लानिंग इस तरीके से है कि 200 करोड़ में से रिसर्च का खर्चा अलग रख दिया जाए, उसको अलग कैप के अंतर्गत सब स्कीम के अंतर्गत 50% इंसेंटिव क्लेम किया जाए, ताकि उस 10 करोड़ के ऊपर का 5 करोड़ निकाल सके, रादर देन उसको कॉमन में 2 करोड़ डालने के। देखिए प्लानिंग से ही
आपका सिंगल और 2 लाइन प्लानिंग से ही 3 करोड़ का आपका सब्सिडी की मैक्सिमाइजेशन का फर्क पड़ जाता है। तो दिस इज एन वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गिव द अटेंशन एंड टाइम कि दिस सेमिनार में आप जो टाइम दे रहे हैं दैट विल डेफिनेटली गिव ऐड सम मोर वैल्यू टू डू यू, कि आप जब सीरियसली उस चीज के ऊपर रिव्यू करेंगे इट विल ऐड मोर वैल्यू टू यू एंड यू कैन इंक्रीज योर इंसेंटिव आल्सो, उसमें आपका इंसेंटिव बढ़ेगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंसेंटिव नंबर 6 इज द पेटेंट कमर्शलाइजेशन इंसेंटिव। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपने अपना कोई फॉर्मूला रजिस्टर्ड कराया है, पेटेंट कराया है, तो पेटेंट पे भी आपको इंसेंटिव मिलेगा। 5 करोड़ की कैप है इसके अंतर्गत, मैक्सिमम कैप है। पर एक लाइन थोड़ी सी इन्होंने ऐड की है जो कि दैट इज वेरी गुड लाइन, कि जो भी पेटेंट होगा उसका कमर्शियली एलिजिबल होना चाहिए। ओनली पेटेंट सक्सेसफुली यूज कमर्शियली आर द एलिजिबल, कि अगर आपने कोई भी फॉर्मूला रजिस्टर्ड करा लिया है वो दैट इज ओके, बट दैट शुड बी कमर्शियली एलिजिबल, नॉट मेरली फाइल्ड चीज पे पेटेंट नहीं का इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो हमने कमर्शियली एलिजिबल मीन्स टू से उस प्रोडक्ट की सेल होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट को आपने पेटेंट कराया। तो दैट इज एन वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर जब आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और ऑडिटर का जो सर्टिफिकेट जब चाहिए तो ऑडिटर नीड सर्टेन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि जो पेटेंट के कमर्शलाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं अवेलेबल हैं, आपके पास पीछे की डेट चली गई है, नहीं पूरे कर सकते, तो आपका पेटेंट के ऊपर जो खर्चा है उसके ऊपर इंसेंटिव नहीं मिल पाएगा। तो इन सब चीजों को अगेन आपको प्लान आउट करना है, टाइमली प्लान आउट करना है। अगर आप कोई पेटेंट डेवलप कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग यूनिट है या कोई आप नई यूनिट है, उसके साथ साथ आप कुछ पेटेंट पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट इंसेंटिव, दैट इज कॉल्ड द एक्सपोर्ट इंसेंटिव फ्रॉम द हरियाणा। तो दैट इज एन वेरी गुड इंसेंटिव जो कि एक्सपोर्ट बूस्टर है। देखिए ये इंसेंटिव समझिएगा एक्सपोर्ट बूस्टर का और थ्रस्ट बूस्टर का। इस बूस्टर के अंतर्गत आपका कैपिटल सब्सिडी को बूस्ट कर देता है। कहता है कि अगर आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो कैपिटल सब्सिडी है वो हम बूस्टर के अंतर्गत 5% दे देंगे, आपको ऑप्शन दे देंगे कि हम आपको कैपिटल सब्सिडी, आप पहले वाले में जो हमने कैपिटल सब्सिडी देखा 20%, 15%, अगर आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं 200 करोड़ का, आपको मिल रहा है इंसेंटिव 20%। अगर आप उस जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं एक्सक्लूसिवली प्रोजेक्ट है जिसमें आप जो भी गुड्स बनाएंगे उसका आपका आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट होगी, तो अगर आप एक्सपोर्ट सेल पूरी करेंगे तो उन्होंने एक परसेंटेज फिक्स कर दी कि अगर आप पूरी सेल कर देते हैं तो ठीक है हम 5% आपको इंसेंटिव दे देंगे। अगर आप उसमें से कुछ सेल डोमेस्टिक करते हैं, कुछ सेल आप एक्सपोर्ट में करते हैं, तो एक रेशियो बना दी कि हाँ जी आपका एक्सपोर्ट का रेशियो क्या होगा, उसके अंतर्गत से एक फॉर्मूला लगा के उसके एक परसेंटेज बेसिस के ऊपर का आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो आपने ये पॉइंट देखना है कि अगर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपका इंसेंटिव क्या बनता है। आपकी ईयर एंड से पहले प्लानिंग जरूरी है कि आपका एक्सपोर्ट का इंसेंटिव किस एक्सपोर्ट की सेल कहां तक जाने वाली जो है, क्योंकि ये सब इंसेंटिव जो क्लेम होगा आपको वो ईयर एंड पे होगा, कि क्योंकि ये इंसेंटिव आपका टर्नओवर से लिंक है, क्योंकि आपका जितना टर्नओवर होगा एक्सपोर्ट का उसी से आपकी परसेंटेज लिंक होगी। तो ये बूस्टर है, मतलब मीन्स टू से कि अगर आप 100% कर रहे हैं तो आपको एक्सपोर्ट बूस्टर 5% है जो कि आपके कैपिटल सब्सिडी के अंतर्गत लग जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन ए और बी दी गई है कि आप या तो ऑप्शन ए है कैपिटल सब्सिडी से लिंक कर लीजिए, या ऑप्शन बी है कि 3% ऑफ एनुअल एक्सपोर्ट वैल्यू ले लीजिए। तो इसका आपको डिसीजन देना है, जो भी आपका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। तो इसको आप उन इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि जो कि नया सेटअप कर रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही हैं या ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो बाकी डिटेल में इन चीजों के लिए हम कस्टमाइज सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट पे फैक्ट्स एडवाइस कर सकते हैं कि कैसे इसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है। प्लीज मूव टू द नेक्स्ट इंसेंटिव, टाइम इज गेटिंग वेरी शॉर्ट। इंसेंटिव फॉर द ग्रीनिंग इनिशिएटिव। देखिए ये दैट इज एन इंसेंटिव जो कि काफी सारी इंडस्ट्रीज जो कि लार्ज हैं परंतु उसे एग्रो सेक्टर के अंतर्गत हैं, जैसे कहीं ना कहीं कार्बन क्रेडिट्स में जनरेट कर रही हैं, कोई पॉल्यूशन सेविंग के लिए बायोमास यूनिट्स हैं या और बाकी यूनिट्स हैं जो कि कार्बन क्रेडिट सेव कर रही हैं। तो दिस टाइम कार्बन क्रेडिट की नंबर ऑफ रेटेड एजेंसीज हैव बीन मार्क कि ओनली कार्बन क्रेडिट from the BEE or internationally recognized agency, Verra, Gold Standard, CDM, Global Carbon Council, these are the eligible units जो कि अगर आपको सर्टिफाई करती हैं कि आपने इतने कार्बन क्रेडिट हैं जनरेट किए हैं, उनका फॉर्मूला दिया हुआ है
₹100 पर क्रेडिट कैप INR 1 करोड़ की पर यूनिट के अंतर्गत। तो दीज आर द स्कीम, इनके अभी फॉर्मूलेज आने हैं ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अंतर्गत कि और डिटेलिंग के अंतर्गत कैलकुलेशन ब्रीफिंग के अंदर दी हुई है। मतलब जो इंसेंटिव है, आप ग्रीन इनिशिएटिव ले रहे हैं, अगर आपकी कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ग्रीन इंडस्ट्री है जिससे कार्बन क्रेडिट आप जनरेट करते हैं, तो आपका लिए बड़ा ग्रे एरिया है। यहाँ पर आप थोड़ा फोकस करके अपनी कैलकुलेशंस को अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि आपके इंसेंटिव को कार्बन क्रेडिट के थ्रू आप 1 करोड़ रुपए का इंसेंटिव वर्कआउट कर सकते हैं। और ऐसे ही आपका रिन्यूएबल एनर्जी का है जिसमें आप 50 लाख रुपए, अगर आप कोई रूफटॉप लगाते हैं या कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी कुछ लगाते हैं तो 50 लाख रुपए पर मेगावाट, इसमें 2.5 करोड़ की कैप है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के ऊपर भी आपका इंसेंटिव है 50% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट का आपको 5 करोड़ रुपए। ग्रीन सर्टिफिकेशन पे भी आपको इंसेंटिव है कि अगर आप 2% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट का आपको 5 करोड़ रुपए। तो दीज आर द इंसेंटिव जिनसे आप अपने बाकी इंसेंटिव की कैप को बढ़ा सकते हैं। दीज आर द एडिशनल इंसेंटिव फ्रॉम द इंसेंटिव अर्लियर डिस्कस्ड। तो ये ग्रीन इनिशिएटिव इज एन आल्सो वन एरिया जिसके ऊपर मैक्सिमाइजेशन इंसेंटिव किया जा सकता है। प्लीज नेक्स्ट मूव ऑन। This is the incentive that is again in a booster dose special package for the thrust sector। जिंदर जी ने एक लिस्ट डिस्कस की थी आपसे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत अगर कोई लार्ज सेटअप हो रहा है, उसको प्रमोट करने के लिए एक टॉप अप कैपिटल सब्सिडी दे रही है कि 15 आइडेंटिफाइड हुए हैं थ्रस्ट सेक्टर और उनको 5% एडिशनल कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। तो दैट इज एन आल्सो वेरी गुड थिंग कि अगर आप 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ आप एग्री सेक्टर में लगा रहे हैं, ऐसे किसी और यूनिट में लगा रहे हैं जो कि आपका थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत कवर हो रहा है, तो आपको 5% एडिशनल टॉप अप फास्ट ट्रैक स्कीम के अंदर ही इंसेंटिव मिलेगा। आप उसको आपने इंसेंटिव को क्लेम कैसे करना है, उसके लिए आपके लिए थ्रस्ट सेक्टर प्रूव करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कैसे कैसे उसके लाइसेंसिंग चाहिए, वो सारी चीजें आपकी प्रूव होनी चाहिए। यस, यू आर एलिजिबल फॉर द एडिशनल इंसेंटिव ड्यू टू द थ्रस्ट सेक्टर, but that incentive, since your capex is in a big, that incentive can also bring in a difference to the 10 to 15 crore in the total, depending upon your कैपेक्स की कितना आपने इंसेंटिव के अंतर्गत कैपेक्स किया है। तो ये 5% का एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। ये एक ही बार मिलेगा आपको इसेंशियल प्रोडक्ट्स जो सर्विसेज डिफाइन की गई हैं और टोटल कैपिटल सब्सिडी के अंतर्गत बूस्टर हो जाएगा। तो देखिए, दो बूस्टर्स के ऊपर हमने बात की, एक तो एक्सपोर्ट का बूस्टर है और एक हमने थ्रस्ट सेक्टर के बूस्टर पे बात कर दी। इससे जो कैपेक्स है वो आपका बढ़ सकता है। तो कंसिडरिंग दीज 9 incentives, let's have a summary because move to the next summary slide please। तो ये आपका इंसेंटिव है, हमने एक समरी के अंतर्गत 9 इंसेंटिव्स की बात की, एक्सपोर्ट यूजर की बात की जिसके ऊपर SC/ST पे, एम्प्लॉयमेंट पे, रिसर्च डेवलपमेंट पे, पेटेंट के कमर्शलाइजेशन पे, कार्बन ग्रीनिंग पे हमने जो बात की, ये टोटल 9 इंसेंटिव्स के ऊपर। तो इससे आप मैक्सिमाइजेशन इंसेंटिव कर सकते हैं। Great, thanks, sir. Many great thanks for sharing Thank you very much. Thank you, Adar. You can start, very please। beautifully designed incentives for our audience. Now I requested to Vikas, please stop your sharings so that आप सभी को, ऑडियंस को, अभी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने काफ़ी अच्छी डिटेल्स में जानकारी शेयर करी कि कौन कौन से इंसेंटिव्स आपके ऊपर अप्लीकेबल हो सकते हैं। डिटेल्स में सर ने बताया। नाउ आप अपने प्रोजेक्ट का जो कस्टमाइजेशंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहता है हमारे लिए। और होस्ट टीम से रिक्वेस्ट है, माय स्क्रीन इज शेयरिंग। ओके, थैंक यू। जस्ट ए मोमेंट्स। ओके, तो अभी हमने जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने शेयर भी किया है। नाउ वी आर मूविंग आवर एंडिंग सेशंस और हम 1-to-1 डिस्कशंस भी करेंगे। आप सभी ने बड़े पेशेंसली पूरे कंटेंट को ध्यान से सुना। और वन मोर आई एम रिपीटिंग टू यू दैट कि जो कंटेंट्स है आपको आफ्टर वेबिनार हम शेयर करेंगे। आप जितने भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हैं, इस वेबिनार स्पेसिफिक्स बोनस आपके लिए हम ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद हम आपके साथ 1-to-1 डिस्कशंस भी करेंगे
हमने इस पॉलिसी स्पेसिफिक एक गाइड बुक, एक रोड मैप आपके लिए तैयार किया है, मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026। इसका गाइड बुक्स अवेलेबल है आप सभी के लिए। इसके साथ साथ केआईपी की एक बिजनेस कम्युनिटीज भी हैं, जिसमें आप एनरोल करके रेगुलर हमारे वेबिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे गवर्नमेंट के जो सब्सिडी अपडेट्स आते हैं वो रेगुलर आपको व्हाट्सएप पे और ईमेल पे भी मिलते हैं। इसके साथ साथ कई वेयर हाउसिंग सेक्टर स्पेसिफिक, बायोमास सेक्टर स्पेसिफिक्स, ऐसे टेंडर अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, तो वो भी आप ग्रैब कर सकते हो। तो बी द पार्ट ऑफ द केआईपी बिजनेस कम्युनिटी जस्ट इन रुपीज 2100 स्पेसिफिक ऑफर फॉर टू यू फॉर टुडे ओनली। ये केवल आज के लिए ही अप्लीकेबल्स हैं। इसमें हम आपको 1 साल का मेंबरशिप भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको इस पॉलिसीज की गाइड बुक भी दे रहे हैं। ये ऑफर स्पेसिफिकली आप सभी के लिए है। होस्ट टीम से भी रिक्वेस्ट है, आप स्कैनर्स आपके सामने आप ग्रैब कर सकते हैं इसको। इसका लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ वन मोर स्पेसिफिक जो है वो है सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स। क्योंकि जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, अभी सर ने इतने टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपके साथ किए हैं, शेयर किए। यदि आप टेक्निकली कहीं भी मिस हो जाते तो आपका जो सब्सिडी बेनिफिट्स है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, वो रिड्यूस हो जाता है। फॉर मेकिंग बेटर राइट बिजनेस मॉडलिंग, राइट सब्सिडी प्लानिंग फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ योर बेनिफिट्स, KIP has launched a specified, beautifully designed product for to you as per your needs, that is the subsidy viability reports। यदि आप कोई भी प्रोजेक्ट हरियाणा में लाइन अप करना चाहते हैं तो उसका आप सबसे पहले सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट बनवाइएगा, SVR डिजाइन करवाइएगा। आज के लिए क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स पे, लार्ज यूनिट्स में आपका बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट्स होता है। हमारा जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग रहता है 51,000 रहता है इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन आज स्पेसिफिकली यदि इफ यू आर गोइंग टू इनिशिएट एनी प्रोजेक्ट इन हरियाणा एंड वांट टू फ्रेम द सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट, ए फ्लैट 50% डिस्काउंट इज अवेलेबल फॉर टुडे ओनली। ये SBR आपको जस्ट इन रुपीज 25,000 में अवेलेबल्स है। तो आप जितने भी अगर कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करना चाहते हैं, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, मैनेजमेंट्स को, अगर आप प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंसेंटिव रिपोर्ट देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट्स में कैसे कैसे प्लानिंग करके आप सब्सिडी लाभ ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो अपने प्रोजेक्ट का SVR जरूर कंडक्ट कराइएगा। तो ये स्पेसिफिक ऑफर है, आज आपके लिए अवेलेबल है, फॉर टुडे ओनली है। नाउ आई रिक्वेस्टेड टू आवर होस्ट टीम्स काइंडली permit to our audience for sharing their questions, and I am expecting from our technical head Rajesh Mehta ji, they will give the needful answer। तो अभी जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, आप वन बाय वन अगर आपका कोई क्वेश्चंस है, आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। राजेश जी अवेलेबल्स हैं। होस्ट टीम से रिक्वेस्ट है, वन बाय वन ही आप परमिट कीजिएगा जो कोई क्वेश्चंस अगर हमारी ऑडियंस करना चाहती है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द एंडिंग सेशन। ये 10 से 15 मिनट का 1-to-1 डिस्कशन राउंड है। इसके बाद हम हमारा वेबिनार क्लोज करेंगे। एनीबडी हु वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और रेज योर क्वेश्चंस। जी जी, विशाल दिस साइड। जी, ग्रेट वेलकम विशाल जी, प्लीज सर। मेरा क्वेरी था इसके अंदर, जैसे हमें आपने बताया था कि आउटसाइड हरियाणा प्लांट शिफ्टिंग पे इंसेंटिव है, राइट सर। तो वो इंसेंटिव कैसे, मतलब अगर हमें प्लांट शिफ्ट करना होगा या मशीनरी शिफ्ट करनी होगी? जी राजेश जी। सर ऐसा है, ये वन टाइम इंसेंटिव है। अभी आप ऑपरेशनल गाइडलाइंस की वेट कीजिए। गवर्नमेंट क्या चाह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि आपको आप ऑलरेडी हरियाणा में काम नहीं कर रहे, हरियाणा के बाहर से कुछ इंडस्ट्रीज हरियाणा में आने की सोचती हैं, तो शिफ्टिंग पे कोई इंसेंटिव नहीं है। आप बात समझिए, देखिए जो इंसेंटिव है कि लार्ज सेटअप पे है, न्यू यूनिट कोई हरियाणा में आ रही है कि आपके हरियाणा के आउटसाइड कोई यूनिट है, तो उसके अंतर्गत आप वो यूनिट तो चलती रहे। आपने यहाँ पर आके नई लैंड ली, नई लोकेशन ली, ठीक है, आपने एक नई यूनिट लगाई, तो आपको नॉर्मल इंसेंटिव मिलेंगे जो लोअर स्केल एंटरप्राइजेज में आ। परंतु आपका क्वेश्चन ये है कि आपका वही की वही यूनिट हरियाणा, मान लीजिए यूपी में है, तो वहां आपने लीज लैंड पे ले रहे हैं, अब आप हरियाणा के पास ही कोई लैंड परचेज कर पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट करना चाह रहे हैं, फाइन। तो देखिए, अब वो टेक्निकली अगर आप बिल्कुल सब ऐसा ही करेंगे, इंडस्ट्री शिफ्ट करेंगे, तो सरकार आपको सिर्फ टोकन इंसेंटिव जो 5-10 करोड़ का सर ने बताया, उसकी डिटेलिंग और अभी येट टू बी एक्सपेक्टेड इन द ऑपरेशन गाइडलाइंस, वही मिलेगा। दैट इज वन टाइम इंसेंटिव ओनली, बाकी और कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा विशाल जी। अच्छा, दोनों क्लबिंग में नहीं होगा? नहीं सर, नहीं। देखिए आप समझिए, वो शिफ्टिंग पे कोई इंसेंटिव किसी भी पॉलिसी में नहीं है।
अदरवाइज तो क्या होगा, एक एंटरप्रेन्योर एक जगह लैंड पट्टे पे लेगा, बिजनेस सेटअप करेगा, फिर दूसरी जगह लैंड परचेज कर लेगा, वही बिजनेस प्लान शिफ्ट कर देगा, इंसेंटिव मांग लेगा। नहीं, इसका तो प्रॉपर नंबर क्लियर ऑडिट होता है। तो इसमें बेटर तरीका क्या है मैक्सिमाइजेशन का, कि अगर आप लैंड लेते हैं तो वो यूनिट चलती रहे, एक नई यूनिट सेटअप करें, उसके ऊपर का आप डीओसी कर लें, क्योंकि लैंड भी परचेज करेंगे तो बिल्डिंग भी बनाएंगे ना सर। अदरवाइज क्या होगा, बिल्डिंग का इंसेंटिव भी चला जाएगा। ठीक तो है। मतलब वो थोड़ी सी कस्टमाइज चीजें हम 1 to 1 करेंगे कि कैसे उसको लेना कैसे है, वो प्रैक्टिकल रास्ता अलग है, परंतु पॉलिसी के मोड के लिए जो बताया मैंने आपको बता दिया, पॉलिसी में जो लिखा हुआ। ठीक है। जी जी, थैंक यू विशाल जी फॉर योर कंसर्न्स। मिस्टर दिव्यम अरोड़ा जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दिव्यम अरोड़ा जी, प्लीज टेक योर क्वेश्चंस। हाय हेलो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि लेट्स से हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30 सीआर की है एंड विद इन 1 ईयर हम 20 सीआर और इन्वेस्ट करते हैं, वुड दैट बी काउंटेड एज लार्ज इंडस्ट्री और स्टिल नॉट बी काउंटेड देयर? नो सर, नो। नहीं, अभी आपका लार्ज यूनिट है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है जिस रेट पे पॉलिसी आया है? हमारी कोई वो इंडस्ट्री नहीं है, बट हम सेटअप करते हैं। लेट्स से माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 30 सीआर एंड विद इन कमेंसमेंट ऑफ दैट यूनिट की यूनिट आज ये कमेंस होगी और उसके 1 साल के अंदर मैं 20 सीआर और इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक तो है, वो और उसके एम्प्लॉयमेंट बाद। कितने लोगों को देंगे? हाँ जी। एम्प्लॉयमेंट देखिए, लार्ज के अंतर्गत आपका जो विकासी लाइन पे है। हाँ जी सर, हाँ हाँ जी। विकास, यू प्रॉपर आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम योर साइड। इसमें सर जो से इन्वेस्टमेंट्स है, अगर आपकी एग्जिस्टिंग उसमें डिफाइन है कि एग्जिस्टिंग लार्ज यूनिट है तभी आपको मिलेगी। अगर आप जैसे 30 सीआर का इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं तो आपकी लार्ज यूनिट नहीं है, तो उसमें नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी एक्सपेंशन पे। ओके अगर आप इसमें नई यूनिट लगा के उसमें 50 सीआर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और ओके 500 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तब आपको ये इंसेंटिव मिलेगा इस यूनिट में। ओके। तो मिनिमम अगर मेरे को लार्ज में काउंट होना है तो 500 सीआर के लिए मुझे मिनिमम नहीं, 500 50 एम्प्लॉयज, 50 सीआर के लिए सीआर। 500 एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके सर। Very I good have a answer. question. थैंक यू जी। So let's say we want to, we are an R&D company and हम अपना एक नया कंपनी क्रिएट कर रहे हैं हरियाणा में एंड उससे हम करीब 500 से 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वेरी डीप R&D लेड, उसका कुछ पार्ट एक्सपोर्ट होगा, कुछ डोमेस्टिक यूसेज भी होगा। तो इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और पीरियड इन टाइम और 5 ईयर्स अराउंड 2000 से 3000 लोगों का। ये किस यूनिट में कंसिडर किया जाएगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर ये इन्वेस्टमेंट को हम 3 ईयर में फेज आउट करें, पहले साल में हम कुछ 250-300 करोड़ रुपए लगाए, दूसरे साल में इतना ही लगाए और तीसरे साल में इतना ही लगाए, तो क्या ये जो लार्जेस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे यूनिट का क्लासिफिकेशन होगा या फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के इस इन्वेस्टमेंट के बेस पे क्लासिफिकेशन होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। विकास, एक स्लाइड आपने शेयर किया था और मैं थोड़ा ब्रीफली भी कर देता हूँ, विकास से विल आंसर। देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक नया यूनिट लगाना चाह रहे हैं, अगर वो क्राइटेरिया हमारा लार्ज के इन्वेस्टमेंट्स के ब्रैकेट में है, तो लार्ज की डेफिनेशन में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंसिडरेशन करने की टाइम लिमिट्स दी हुई है, कि आपकी जो टाइम लिमिट विकास जी ने बताई थी। विकास, जो प्लीज इलैबोरेट दैट टाइम लिमिट सर, जो आपने अपने प्रेजेंटेशन में शेयर की थी। इसमें सिर्फ 1 ईयर की टाइम लिमिट है कि मान लो कि आपने आज कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें 80 करोड़ हो गई है, तो आपको 45 सीआर और लगाने के लिए आपको 1 ईयर का टाइम मिलेगा कमर्शियल प्रोडक्शन से, कि जिसमें आपको 125 करोड़ की आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाए। ओके, सो बट कोई भी फैक्ट्री लगाने जाएंगे, यूनिट लगाएंगे, तो इट विल टेक सम टाइम। वो तो लगाने में 18 महीने 24 महीने लगते हैं, 18 महीने लग जाते हैं ग्राउंड हाँ सब। तो कमर्शियल प्रोडक्शन 18 महीने बाद आएगा, तो उससे फिर समय काउंट करेंगे या डे जीरो पे जो फर्स्ट ईयर जब यूनिट रजिस्टर करके हमने अप्लाई करा है एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन डेट से 1 साल काउंट कर रहे हैं? नहीं, इसमें क्या है सर कि आपको एप्लीकेशन जो सी लगानी है ना वो पहले लगानी है। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले आप बताएंगे हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी होगी। मान लो कि आप लेट्स से आप कहते हो कि 150 सीआर की हमारी इन्वेस्टमेंट होगी इसमें, तो उसमें अब आपको यूनिट काउंट करने के लिए 125 सीआर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपने 1 साल में 180 सीआर लगा दिए और आपका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, तो आपको आगे 1 साल का टाइम और मिल जाएगा 70 सीआर इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अंदर एक चीज मैं और ऐड करूं, जो कैपिटल सब्सिडी स्कीम है उसमें हमारा जो टाइमलाइन दी हुई है
अगर आप 3 साल में भी पूरे कर लेते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि 3 साल लग सकते हैं, तो आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। जो हम बात कर रहे थे कि अगर फास्ट ट्रैक में जो स्कीम है, क्योंकि कैपिटल सब्सिडी है फास्ट ट्रैक पे, अगर आपने 2 साल में नहीं किया, 3 साल में कर लिया, जो जेन्युइन टाइम लग रहा है उसका, परंतु आपका इंसेंटिव का रेशो कम हो जाएगा। जैसे कि सब प्राइम में 15% इंसेंटिव है, अगर आपने 3 साल लिए उसको पूरा करने के लिए और आप लार्ज में आ भी गए कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट से, विद इन 3 इयर्स कमिटमेंट लग गए आपको डीओसी में, तो आपका इंसेंटिव 15% की बजाय 10% हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ने जो स्कीम फॉर्मुलेट की है सर, वो फास्ट ट्रैक कैपिटल सब्सिडी है, कि अगर कोई भी मतलब बड़ी यूनिट सेटअप कर रही है तो एक टाइम बाउंड एक्सरसाइज में मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट्स लेके डीओसी कर दे, तो हमें वो टाइमलाइन का ख्याल में रखना पड़ेगा। तो वो हम एक थोड़ा सा कस्टमाइज भी डिस्कस कर सकते हैं कि किस डेट पे कौन सा डॉक्यूमेंट जनरेट करना है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट बेसिक टाइमलाइन पकड़नी है, कौन सा काम पहले करना है, ताकि इस आप टाइम ब्रैकेट में भी आ जाए और आपका इंसेंटिव भी मैक्सिमाइज हो जाए और आपका मतलब को लार्ज यूनिट का सेटअप भी हो जाए जो जेन्युइन उसके अंदर एक्सपेक्टेड टाइम है। तो दैट कैन बी बेटर टैकल्ड इन आवर कस्टमाइज सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट सर, प्लीज। अंडरस्टूड, थैंक यू। एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। अब मान लीजिए हमें हरियाणा में इसके लिए लैंड भी एक्वायर करना है। इज देयर अ सेपरेट डिपार्टमेंट विच कैन हेल्प अस स्पीडीली एक्वायर लैंड? वी कैन इन्वेस्ट मनी एक्सेट्रा, बट लैंड क्विकली एक्वायर कर सके जहां पे एटलीस्ट गवर्नमेंट क्लियरेंसेस हो। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन सर। दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आंसर फॉर ईच एंड एवरीवन। जो लोग देख रहे हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए, हमने अभी इस को इसमें एक कवरेज है, दैट इज कॉल्ड द कस्टमाइज्ड पैकेज। वट एवर इन्वेस्टमेंट्स, अब 1,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, एक हरियाणा एंटरप्रेन्योर प्लानिंग डिपार्टमेंट हीप बोलते हैं उसको, इन्वेस्ट हरियाणा आप मानिए चलिए, इन्वेस्ट हरियाणा पे ऑफलाइन ऑनलाइन पूरा पोर्टल है, उस पर एप्लीकेशन लगेगी। आप अपनी एक ब्रीफ बना के आप अपने कस्टमाइज पैकेज के लिए एक एप्लीकेशन देंगे कि मुझे उस पैकेज के अंतर्गत मतलब गवर्नमेंट से ये सपोर्ट चाहिए, तो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन कंसर्न डिपार्टमेंट को मार्क कर दी जाएगी। अगर वहां कोई इस टाइप की लैंड अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास उनके ऊपर का, तो दे कैन डिस्कस कि अगर आप कोई लैंड गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है या HSIDC के कुछ प्लॉट्स हैं जहां आप इंटरेस्टेड हो, वो सब चीजें मतलब उसके बाद आएंगे। फर्स्ट यू शुड हैव टू अप्रोच टू द इन्वेस्टर हरियाणा बाय कस्टमाइजेशन। उस केस में मान लीजिए आपका 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी है, तो 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो गवर्नमेंट जो इंसेंटिव दिए हुए हैं इनसे भी बड़ा इंसेंटिव आपको मिल सकता है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा उसमें कि आप कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हरियाणा की इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, जीडीपी को क्या फायदा होगा, किस प्रोडक्ट सेगमेंट में आप कर रहे हैं, एक्स नंबर ऑफ ग्राउंड्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो उसके बेसिस पे इट इज बेटर कि आप कस्टमाइज एप्लीकेशन पुटअप करें, एंड देन वी कैन सीक एंड लाइजन ऑन योर बिहाफ टू द गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट के अंतर्गत मिनिस्टर लेवल पे भी मीटिंग कर सकते हैं, और जितने भी डायरेक्टर जनरल हैं उनसे मीटिंग करके वी कैन गो फॉर द हायर इन्वेस्टमेंट, एक कस्टमाइज पैकेज, वो ज्यादा बेटर रहेगा सर। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जो हमने बात करी कि कुछ प्राइम एरियाज हैं और कुछ सब प्राइम है, ये ऑलरेडी मैप पे स्पॉटेड है स्टेट में कि कहाँ कहाँ कौन से एरियाज हैं जो इनके अंडर फॉल करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए सर, ये पॉलिसी अभी आई है, पहले जो स्टेटेड थे जिनके नाम थे वो थे ABCD, उनकी तो नोटिफिकेशन एग्जैक्टली मिल जाएगी। अब इन्होंने ना पहले एरिया को हम छोड़ दें, फोकस एरिया, फोकस एरिया पे तो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आनी है लिस्टेड करके ये फोकस एरिया होंगे, क्योंकि अभी तो पॉलिसी ऑपरेशन गाइडलाइंस आनी है। तो जो बाकी एरिया के बारे में इन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया कि हाँ जी ये गांव है ये इसमें आएगा, उसके ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर दी। अगर आपको हमारी टीम आपको 1-to-1 में शेयर कर देगी, जैसे इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की कि एक गांव है मान लो अहमदपुर, अहमदपुर की जो लैंड है आउट ऑफ कंट्रोल्ड एरिया है। अब ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी पूरी होती है कि कंट्रोल्ड एरिया के बाहर है, तो पूरे हरियाणा में कहीं भी लैंड हो तो वो जो आपकी सब प्राइम एरिया में आ रही है। तो अब जो क्लासिफिकेशन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड क्लासिफिकेशन है, कि आपको कैरेक्टर्स जो डिफाइन किए गए हैं सब प्राइम के लिए इंटरमीडिएट के लिए, वो हमारी टीम आपको डिटेल नोटिफिकेशन के साथ शेयर कर दीजिएगी। आपको DTP ऑफिस से ये पूछना होगा कि जिस जगह आप टेंटेटिवली लैंड ले रहे हैं उसका बयाना देना जा रहे हैं, तो बयाना देने से पहले आपको ये पूछना पड़ेगा वहां पर कि लैंड जो फॉल आउट होती है कंट्रोल एरिया में हो रही है, क्या ये इंटरमीडिएट एरिया में कहीं ऐसा एरिया अर्बन एरिया और कंट्रोल एरिया के बीच में हो रही है, क्या म्युनिसिपैलिटी कमेटी एरिया में आ रही है। जिस एरिया में वो लैंड आ रही होगी उसको जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा कर रही होगी उसके अकॉर्डिंगली उसका सब प्राइम इंटरमीडिएट फोकस नॉट फोकस, ठीक है, ये डिसाइड होगा, उसी के अकॉर्डिंगली आगे के इंसेंटिव डिसाइड होंगे। तो वो आप कॉपी ले लीजिएगा, हमारी सेल्स टीम कॉपी दे देगी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स की, और जो भी लैंड आपका बयाना करने चाह रहे हैं
उसका वो करेक्टरिस्टिक्स क्वालिफाई करा लीजिएगा टीम से, तो अकॉर्डिंगली निकल के आ जाएगा कि कौन सा उसके ऊपर अगर एप्लीकेबल हो। फाइन। थैंक यू शिवम जी। आपने बड़े अच्छे जो आपने क्वेश्चंस रेज किए हैं, आपको हमारी टीम नीडफुल सपोर्ट शेयर कर देगी। नाउ एनी अदर वन इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, शैलेंद्र गौर जी अगर, हाँ दिव्यम जी पूछना चाह रहे हैं, हाँ बोलिएगा सर। अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा माइक आप अपना। हाँ बोलिए। सर दिस इज गोइंग अ बिट ऑफ टॉपिक। लेट्स से मेरी इन्वेस्टमेंट अराउंड 30 सीआर के जा रही है, तो उसके लिए बेनिफिट्स सब्सिडीज लुकआउट करने के लिए मुझे क्या देखना चाहिए सर? आप अगर आप नया प्रोजेक्ट सेटअप नया करते हैं, प्रोजेक्ट है, ओके नया प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। कोई बात नहीं, अगर 30 करोड़ है तो हमारा ये जो सेशन है ये तो है लार्ज के लिए। हम Yes. लोग स्मॉल माइक्रो मीडियम पे भी डील करते हैं, तो उसके लिए अभी नई पॉलिसी आने वाली है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम की। अगर मान लो और कोई भी जो अटेंड कर रहा है जो लार्ज में फॉलो नहीं होता, तो मीडियम एंटरप्राइज में पहले थी हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी 2020 में आई थी, 5 साल पूरे हो गए, अभी ये एक्सटेंडेड है, शायद 1 महीने के अंदर ही नई पॉलिसी आ रही है हरियाणा की, आत्मनिर्भर करके हरियाणा की नई पॉलिसी आएगी एमएसएमई की। तो अभी पुरानी पॉलिसी कंटिन्यूशन में है, आप हमारी टीम के साथ टच कीजिए, जैसे ही नई पॉलिसी आएगी हमारा एक और वेबिनार भी होगा, उस पर हमारी बुक्स भी आएंगी। उस पॉलिसी में अगर आपको, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद इन 1 मंथ रिलीज हो जाएगी। अगर आप सो अर्ली यू आर गोइंग टू स्टार्ट, तो आप अभी प्रेजेंट जो स्कीम है उसका एक सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट बना सकते हैं कि 30 करोड़ पे आज क्या क्या इंसेंटिव मिलेंगे, और अगर कल स्कीम नहीं आ जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान बढ़ जाता है, जैसे सर कह रहे हैं कि आप 30 करोड़ की बजाय एक नई कंपनी बना के सीधा 50 करोड़ लगाओ, परंतु कंडीशन है 500 लोगों को रोजगार देना है, और 500 लोगों को लगता है रोजगार नहीं दे सकते, तो ऐसी चीज में मत जाओ। फिर आप 50 करोड़ है, फिर आप 125 करोड़ पे नहीं पहुंच सकते, फिर आप मीडियम में फॉल करो। मीडियम के लिए भी बहुत अच्छे इंसेंटिव है, तो उनकी इंसेंटिव की कैलकुलेशन करो। हर जगह इंसेंटिव है, बशर्ते कि जो इंसेंटिव गवर्नमेंट पॉलिसी में लिखा हुआ है पूरा पूरा मिल जाए। देखो हम लोग 2008 से इंसेंटिव पे काम कर रहे हैं, आज में 18 साल हो गए सर, पर हमने ये देखा है जितने भी इन्वेस्टमेंट सरकार की पॉलिसी में बहुत लिखा होता है, किसी न किसी के डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, 100% इंसेंटिव ले नहीं पाता वो। तो इसलिए हमारा फोकस ये है, इट इज बेटर कि अगर 10 करोड़ इंसेंटिव में आप 90% भी लेंगे, हम भी सक्सेस है और आप भी सक्सेस हो, क्योंकि ये हमारी और आपकी मिली हुई अंडरस्टैंडिंग से ही काम होता है। कई बार हमारे हाथ बन जाते हैं, इन्वेस्टर के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, टाइमलाइन लिखी गई होती है, कोई डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हो सकते, किसी का जीएसटी बिल कुछ और हुआ होता है, तो वो सब चीजें, क्योंकि इंसेंटिव जब सरकार देती है, आप मान के चलिए मतलब ऑडिट से लेकर सर्कुलर से लेकर स्टैट्यूटरी प्रोविजन से लेकर बाल की खाल खींच लेती है, और उसके ऊपर क्रॉस ऑडिट इतने हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से ऐसे मुद्दे जरूर निकल के आ जाते हैं कि जो कि बड़े हिडन होते हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है कि जो भी इंसेंटिव आपको में मिल जाए वो आपके खाते में आ जाए, 100 का 100%। हर इंसेंटिव अच्छा है जो आपको आपकी एलिजिबिलिटी में मिल सकता है। ठीक है, तो आप टीम से टच में रहिएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम के एंटरप्राइजेस के जो बेनिफिट्स है टीम शेयर कर देगी। थैंक यू देवम जी। बीइंग एन एमएसएमई ओनर्स, यदि आप कोई प्रोजेक्ट प्लान करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट के प्रोविजंस हैं। शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र गौर जी वेलकम सर, आपका स्वागत है। प्लीज टेक योर क्वेश्चन सर। शैलेंद्र जी। नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार सर। थैंक यू, वी आर कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन एंड बेसिकली मेरा इस पूरे वेबिनार का जो टेकअवे है वो ये है कि आप पॉलिसी शेयरिंग के रिगार्डिंग आपने चीज़ें और ये पूरा टेक्निकल डिटेल्स, फाइनेंशियल टेक्निकल डिटेल आपने शेयर करी है, बट प्रैक्टिकली लाइक मैं एक एग्जाम्पल समझते हैं तो उससे मेरा क्वेश्चन होगा, और ये चीज़ें मेरी बुक में भी जो शायद मैंने आपसे शेयर करी हुई है, उस बुक के अंदर ये चीज़ें मैंने लिख फैक्टर है एनर्जी, तो उसी के लिए हम लोगों ने जो है 4 ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज हमने डेवलप करी हैं। अभी करी तो ज़्यादा है लेकिन बाकी तो मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं, ये 4 ऐसी हैं जो सिविल में दी जा सकती हैं। तो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जनरेटर में से हमने फ्यूल पार्ट निकाल दिया, इंजन पार्ट निकाल के हमने उस 1 किलो पैनल से हम लोग 7.5 किलोवाट और 10 किलोवाट के अल्टरनेटर को यूजिंग नैनो मटेरियल्स एक प्राइमिंग जनरेट करके हम वहां से पावर जनरेट कर रहे हैं।
तो एनर्जी तो हर एक इंडस्ट्री का पार्ट है। अब इसके पे वर्किंग बिल्कुल रेडी प्रोडक्ट हमने डेवलप कर लिया है, तो हमारा काम सारा R&D का ही है। तो का ही अगर हम देखें तो अब एट प्रेजेंट हमारी वर्कशॉप तो कहीं और है, यहाँ तो नहीं है। तो उस केस में क्या हम अपनी वर्कशॉप वहीं रख के और यहीं पे अपनी कंपनी रजिस्टर करके काम करें, तो क्या वो R&D के सारे फंड्स हमें मिलेंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरे, जो एक प्रोस्पेक्ट है जो जिसपे ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं है, इवन गवर्नमेंट में भी इस चीज को ये तो नहीं कहूँगा इग्नोर किया गया है ये, लेकिन इतना जरूर है कि ये रह गई है, हो सकता है बाद में कभी ऐड हो, कि मुझे अगर बच्चों को हरियाणा के स्टूडेंट्स को मैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज या NIT यहाँ से यूनिवर्सिटी से मैं अगर वहाँ से उनको एनरोल करूँ अपने साथ, तो उस सूरत में ये क्या मानेंगे? ये से एम्प्लॉयमेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये मेरे दो मेन क्वेश्चन है। हाँ राजेश जी प्लीज। हाँ सर मैं थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रही थी, और वैसे क्वेश्चन समझ नहीं पाया, जितना मैं समझ पाया हूँ एक बार प्लीज ऐड ऑन कर दीजिएगा। इट सीम्स मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ दोबारा। हाँ जी प्लीज। देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने, जैसे आप लोग जनरेटर, डीजल जनरेटर है ना, आप सभी को पता होगा, उसमें एक इंजन है जो डीजल से रन करता है, हमने उसको रिमूव कर दिया है और सोलर पैनल, 1 किलोवाट का सोलर पैनल से हम लोगों ने 7.5 किलोवाट और 10 किलोवाट के जनरेटर को रन किया है यूजिंग नैनो। हमने कुछ नए नैनो मटेरियल दिए हैं और उनकी हेल्प से हमने प्राइमिंग जनरेट करके उनको रन किया है, और पूरा एक सिस्टम पोर्टेबल है जिसका साइज है 6 फीट बाय 4 फीट बाय 3 फीट एंड दैट इज ऑन व्हील। वो व्हील्स के ऊपर है, आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने गाड़ी के पीछे उसको टो करके लेके जा सकते हैं जहां आपको जरूरत हो। और उसी तरह के छोटे और भी इसी तरह के एनर्जी डिवाइसेस डेवलप किए हैं, और सोलर थर्मल कंडक्शन सिस्टम यूज करके हम स्मेल्टिंग शॉप्स के लिए एप्लीकेशंस डेवलप करी हैं हम लोगों ने। मतलब टेम्परेचर रेंज ऑफ 600 डिग्री, 900 डिग्री, और अभी हम 1800 डिग्री के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, गुड गुड गुड। जिसमें हमें डे टाइम के अंदर किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिकल पावर या फ्यूल यूज करने की जरूरत नहीं है। ये है जो टेक्नोलॉजी जिन पे हम काम कर रहे हैं। और अब रह गया कि अभी ये जहां हम कर रहे हैं वो हरियाणा से, लेकिन हम कॉर्पोरेट ऑफिस हम यहाँ रखें, क्या ये काम करेगा? पहली चीज एज पर पॉलिसी। दूसरी चीज, मैं जितने भी प्रोफेशनल को हायर करूं वो मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले जो फाइनल ईयर में है या जो जस्ट अभी पास आउट हुए हैं, मैं यूनिवर्सिटी के थ्रू या कॉलेज के थ्रू मैं उन्हें हायर करूं, क्या इसे एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा? माना तो जाना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन सर। मैं थोड़ा समझ लूं, आप ये कहना चाह रहे हैं अभी आप आउट ऑफ हरियाणा से हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जी नहीं, आपके पास एक मिनट सर एक मिनट, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं ये R&D का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये मेरा वॉलंटियर प्रोफाइल है, अदरवाइज मैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में सब डिविजनल इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग एंड रोड्स में पिछले 26 साल से मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, और रिसर्च में पिछले 28 साल से हूँ, और इंडिया को अब से पहले 4 बार इंटरनेशनल रिसर्च प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करके आ चुका हूँ। नैनो मटेरियल, फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचर वॉरफेयर, ये मेरे डोमेन है जिनमें हम काम कर रहे हैं। वेरी गुड। तो देखिए सर, जो आपने 2 क्वेश्चन रेज किए कि क्या एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा और आप कॉर्पोरेट ऑफिस वहां रखें, तो उसमें क्या होगा कि हमें एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी जो हरियाणा के में अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाएगी। क्योंकि देखिए अब आप वो कंपनी बनाएंगे, प्रोडक्शन यूनिट हरियाणा में लगाएंगे, पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आपकी वो कंपनी जो दूसरी कंपनी है उसका अगर ब्रांच ऑफिस खोलेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगा, तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी रहेगी, एक नई कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी,
जिसका आप कोई यहाँ पर अगर आप कोई यूनिट लगाना चाहते हैं हरियाणा में कहीं लैंड लेके, तो मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। अगर आप यूनिट नहीं लगाना चाहते हैं, तो सर्विस में जाना चाहते हैं, तो लार्ज सेक्टर पे अगर आप जाते हैं सर्विस में, जैसे हमारी टीम ने भी बताया था कि एजुकेशन जो सर्विसेज है, एजुकेशन जो एरिया है, वो भी गवर्नमेंट का लार्ज इंडस्ट्री के इस एरिया के अंतर्गत एक एलिजिबल एरिया के अंतर्गत आ रहा है। कुछ चीजें हैं सर, अगर आप एजुकेशन के लिए यहाँ सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो चार एरिया आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आ रहा है और एजुकेशन भी आ रहा है। ये दोनों आपके एलिजिबल क्राइटेरिया में आ रहे हैं पॉलिसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। आई थिंक ना शैलेंद्र जी मूविंग स्टेज पे हैं, और दैट्स वाई कनेक्टिविटी इश्यूज उनके बहुत रेज हो रहे हैं, डिस्टरबेंस आ रही है उनके एंड की ना। शैलेंद्र सर मैं जी आप ड्राइव कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं ड्राइव हाँ कर रहा हूँ एक्चुअली। आप ड्राइव कर रहे हैं, दैट्स वाई ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। या तो आप स्टॉप कर लीजिएगा फॉर बेटर क्लैरिटी सर, या फिर आफ्टर वेबिनार्स आपको थोड़ा सा क्लैरिटी से हम आंसर दे पाएंगे। 1 मिनट रुकिए, मैं गाड़ी रोक लेता हूँ, हाँ हाँ, तो क्योंकि थोड़ा सा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वॉइस डिस्टरबेंस हो रहा था उससे काफी ज्यादा। इज इट फाइन नाउ? राइट सर, राइट, थैंक यू अब सही आ रहा है आवाज, बीच में हाँ काफी स्मूथ आ रहा है। बताइए। तो जी सर आप इस चीज को, क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। आप हरियाणा में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई प्लांट मशीनरी या कोई सेटअप करना चाहते हैं? अब देखिए सिचुएशन मेरे साथ ये है कि हम 4 लोगों का ग्रुप है, और बाकी रिसर्चर्स भी हैं जो हमारे साथ हैं। वेरी अब गुड, उन सभी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वेरी गुड। कंटिन्यूसली। अभी तक हम लोग 26 टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, जिसमें हमने 11 हमारी आर्म फोर्सेस के लिए डेवलप करी हैं, स्पेशलाइज्ड हैं। लाइक ड्रोन्स हैं। अब ड्रोन को भी रन करने के लिए आपको एनर्जी सोर्स चाहिए, मतलब वो एनर्जी सोर्स खत्म तो ड्रोन भी नीचे आ जाएगा। वेरी बट गुड, हम लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जिसमें 24 आवर 365 डेज आप ड्रोन आप उड़ता रहेगा, प्रोवाइडेड आपके हाथ ना थके। मतलब उस पावर सोर्स में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की रेयर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो वर्ल्ड में फिलहाल वेरी प्राउडली से वर्ल्ड में ये चीजें कहीं नहीं है, आज की डेट में हम लोगों ने इनको डेवलप किया है, वेरी गुड। ठीक है। अब इनके लिए अब इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए तो हम अटेम्प्ट कर ही रहे हैं कि फंडिंग पार्टनर्स मिलें, ठीक है। बट वही है कि अभी इन चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन इन द मेन टाइम हमारा ये जो R&D का प्रोसेस है, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ चीज़ें बना ली अब उनको हम रोक ही देंगे। अब इससे नई टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। अब इसका ऑप्शन मेरे को और भी नजर आने लग रहा है। अब जो मैं किसी भी पॉलिटेक्निक के साथ या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ में इंक्यूबेंट होता हूँ, वो वहां से मैं मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता हूँ, डिजाइन डेवलपमेंट सब कुछ कर सकता हूँ। वेरी गुड, दैट शुड बी ए पार्ट ऑफ जो पॉलिसी आप बता रहे हैं। द पॉलिसी फ्रेम्ड हैज द encrypted resource for all such things as per me। बिल्कुल सही है। तो सर देखिए, आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पॉलिसी बताया था, अगर आप हरियाणा में कोई एक नई कंपनी बनाते हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रजिस्टर्ड होती है, एज एन उसका मेन ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो उस पे अप टू 10 करोड़ रुपए तक का आपको कैपिटल सब्सिडी मिल सकता है, अप टू 10 करोड़ रुपीज तक का। 50% ऑफ द टोटल कैपेक्स जो उसके ऊपर खर्च करेंगे, अगर आप लार्ज एंटरप्राइजेस हैं ऑलरेडी, कोई आपके पास यूनिट है। अदरवाइज अगर आप लार्ज एंटरप्राइजेस नहीं है, तो आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की एक और पॉलिसी है, क्योंकि लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए आपके पास कोई एग्जिस्टिंग यूनिट होना चाहिए, उसका एक एग्जिस्टिंग टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है, या आप उतने बड़े स्केल के ऊपर 125 CR का जो टर्नओवर का क्राइटेरिया है उसको पूरा करें। अदरवाइज आपको जो इंसेंटिव मिलेगा माइक्रो स्मॉल मीडियम में करेगा। तो जितेंद्र जी आपके साथ टच में रहेंगे, आपको एक कस्टमाइज सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट ऑफर करेंगे, जिसमें आपके लिए बेटर क्या रहेगा कि आप लार्ज के थ्रू मैक्सिमाइजेशन इंसेंटिव मिलेगा या माइक्रो स्मॉल मीडियम के थ्रू मैक्सिमाइजेशन इंसेंटिव मिलेगा, इसकी पूरी कैलकुलेशन कर देंगे। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, उस नई यूनिट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, जो भी आप बनाएंगे हरियाणा में, जैसे आप बात कर रहे हैं कॉलेजेस से, उसका भी आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। तो पूरी सारी चीजें आपसे कस्टमाइज डिस्कशन कर लेंगे कि आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को भी लूप में ले लेंगे, तो उनसे एक डिस्कशन करके एक कस्टमाइज वायबिलिटी रिपोर्ट बन जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, जिसके अंतर्गत क्वांटम आ जाएगा, अगर इतना FCI होता है तो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो कितना इंसेंटिव मिलेगा।
क्योंकि इनका जो सभी का पेटेंट प्रोसेस अभी चल ही रहा है और कुछ नए पेटेंट्स हमने अभी फाइल करने हैं, ठीक है। तो ये मान लिए, वैसे तो हम लोग रिसर्च में आज के नहीं बहुत पुराने हैं, बट ठीक है, लेकिन ऑन द बैकग्राउंड हम लोग लो प्रोफाइल रह के काम कर रहे थे, वेरी सिंपल। और टिल देन जब तक हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट रेडी ना हो तब तक बोलना भी नहीं चाहिए। सो वी आर रेडी, ठीक है ना। दिस इज समथिंग। अब जो इन पूरी पॉलिसीज के अंदर ये चीज हिडन पार्ट है कि जो जितना मेरे को समझ में आया है एज ए टेक्निकल पर्सन, और जो फाइनेंशियल पार्ट पे आप लोग ज्यादा स्ट्रांग टेक्निकल काउंटर पार्ट हो, तो आप लोग आपको तो गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करना चाहिए कि भाई आप ये जो इंक्यूबेंसी स्कीम है इसको इससे अटैच करें, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का सपोर्ट मिले, उनको एक्स्ट्रा जो अवेलेबल ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हो गया ये, और वहां से उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गया, सारी चीजें उनके लिए जनरेट होती है। बिल्कुल सर, आप आप लोगों बिल्कुल के ठीक कह पास रहे वो हैं। है। इस विषय में हम आपके कस्टमाइज रिक्वेस्ट हरियाणा मिनिस्टर्स तक भी पहुंचा सकते हैं, तो हम एक सेपरेट बात करेंगे। अगर आप इस पॉइंट को स्किल डेवलपमेंट के लिए रेज करना चाहते हैं, आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल है, तो इन्वेस्ट हरियाणा का एक अलग से सेल है, तो वी कैन टॉक लेटर ऑन कि कैसे उसको हरियाणा गवर्नमेंट तक पहुंचाना और एक कस्टमाइज बेनिफिट कैसे लेना है, तो उस पर हम और एक ये ठीक है, और ये प्रपोजल तो खैर मैं मेरे डिपार्टमेंट के लिए भी, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ नया काम जनरेट किया है, तो पूरे हरियाणा के लिए तो ये स्किल डेवलपमेंट वालों के पास में अगले हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अगले हफ्ते में पूरा प्रपोजल लेके जा ही रहा हूँ। वेरी गुड, दैट इज अप्रिशिएबल। वहां से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को चला जाएगा, क्योंकि ये सब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की पॉलिसीज है। तो अगर आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हरियाणा में डीजी सर या एडिशनल डायरेक्टर से कहीं से मुलाकात करेंगे तो भी वेरी गुड रहेगा। एनीवे, ठीक है सर, मेरे तो यही कंसर्न थे, एंड ठीक थैंक है यू। सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर शैलेंद्र जी। थैंक यू और मैं शैलेंद्र। हिसार ही बेस्ड हूँ जितेंद्र जी, एज वी बोथ नो, तो हम कभी यहाँ मिल ही सकते हैं। आप हिसार में हैं या कहीं बाहर हैं? हिसार में ही है सर। ग्रेट वेलकम, आइएगा सर ऑफिस में। वेलकम सर। श्योर सर, मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू सर। Now we are moving to ending our sessions. Is there any other ones want to discuss any questions? So now we are moving to ending. Elizabeth Corner जी जुड़े हुए हैं. Is there any questions from your side, sir? Anyone, any others want to ask any questions? भविष्य जी, संदीप नागपाल जी, नवीन कंसल जी, सुबोध कुमार जी. Okay. Great, thanks sir to participate. जी सुबेद जी, प्लीज बोलिएगा सर. बेसिक क्वेश्चन था हाँ बोलिएगा सर. सर। एक्चुअली जैसे भी आप बताया, अभी एमएसएमई और ये लार्ज और मेगा है, अगर सपोज करो मतलब ठीक है इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से ऊपर जाती है, जो कि लार्ज में आ गया, जो लार्ज में, बट द थिंग, क्या ये सेल एमएसएमई के लिए अलग से है इन्वेस्ट हरियाणा में, या ये भी लार्ज इसका मतलब सीआईसी के थ्रू जा सकते हैं, जो कमेटी बनी है, या इसके लिए एक अलग रूट है, मतलब उसके थ्रू जाना? आई वांट टू बस क्लैरिफाई कि एमएसएमई के लिए अलग रूट है, या ये भी सेम इसी रूट से जा सकते हैं, लार्ज वाले रूट में? सर देखिए, अभी पिछले साल क्या हुआ करता था कि एक कॉमन पॉलिसी हेलो। थी, पिछले साल एमएसएमई और लार्ज की। Yes. दिस इज फर्स्ट टाइम हरियाणा गवर्नमेंट ने लार्ज, अल्ट्रा लार्ज Good, और sir. टाटा के लिए एक सेपरेट पॉलिसी बना दी है। सेपरेट पॉलिसी आ गई, एमएसएमई की नई Right. पॉलिसी आने वाली है, विद इन हाँ, ए बिल्कुल। वीक और 10 डेज 15 डेज आ जाएगी। और इनकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस 3 महीने में Right. सरकार ने पहली बार है ये लिखा है कि जो लार्ज यूनिट है भैया, इसको 3 महीने में पॉलिसी लेके आएंगे, और जिस दिन लार्ज यूनिट एलिजिबल मिलगी उसके 50% सब्सिडी दे देंगे, और 45 दिन के अंदर बाकी सब्सिडी देंगे, नहीं दिए तो 8% ब्याज देंगे। तो देखो सरकार का माइंडसेट ये है कि जो Okay. लार्ज यूनिट है उनको सेपरेट कर दे, उनका प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, ऑपरेशनल गाइडलाइंस आएंगी, उसमें पता चलेगा उनका रास्ता ये अलग बनाते हैं, उनकी चेन कैसे बनाते हैं। तो दीज आर Okay. क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो ये अगले 1 महीने के अंदर अच्छा, क्लैरिटी आ जाएगी कि एमएसएमई और जो इंडस्ट्रीज हैं दोनों के रूट कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू रखे जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कमेटी में जा रही है, जाएंगे। कौन कौन से हाँ, पर्सन, हाँ, तो आपको क्लियर कर देंगे सर प्लीज। हाँ, क्योंकि
राइट राइट राजेश जी, क्योंकि इवन दो इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 125 करोड़, मतलब एक ठीक है, मैं आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द प्लानिंग फॉर द काइंड ऑफ स्पेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो वो इन्वेस्ट तो 25 ऊपर जाएगी, बट द थिंग इज दैट कि वो मतलब वो क्लैरिफाई भी एमएसएमई रूल में से जाना है या आवाज कट रही है। तो बस जी आपका कोई नेटवर्क इशू है और ओके आफ्टर सेशंस भी जैसे मैंने अभी बताया था कि इट्स ए वेरी इंटरेक्टिव सेशंस और बहुत कस्टमाइज राइट इसमें टेक्निकल नो हाउ चाहिए होगा क्योंकि ईच वन हैव ए सेपरेट प्रोजेक्ट्स। तो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर द मोर सब्सिडी बेनिफिट देन आई recommended to go for a subsidy viability report for your proposed project sir। तो आफ्टर एंडिंग ऑफ राइट दिस, राइट हाँ, हमारी सेल्स टीम जो है वो आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे सर, आपके प्रोजेक्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग लेके वी कैन प्रोसीड फॉर द एसवीआर सो दैट यू कैन प्लान योर सब्सिडीज फिजिकल इंसेंटिव्स अकॉर्डिंगली विद आवर कंसल्टेंट सर। तो ग्रेट थैंक्स टू कनेक्ट विद अस। श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यू once again great thanks to all participants। now we are moving the ending sessions। हम हमारे वेबिनार को एंड कर रहे हैं। आप सभी ने बड़ा पेशेंसली ध्यान दिया और सुना भी। पूरे वेबिनार का रिकॉर्डिंग्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे, पीपीटी शेयर कर देंगे। वन मोर थिंग्स आई रिक्वेस्टेड टू ऑल पार्टिसिपेट प्लीज ज्वाइन द आवर बिजनेस कम्युनिटी मेंबरशिप सो दैट वी कैन शेयर द रोड मैप और गाइड बुक फॉर दिस पॉलिसी टू यू आल्सो, ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। होस्ट टीम ने आपको लिंक भी शेयर किया हुआ है, आफ्टर सेशंस भी हम आपको शेयर कर देंगे। प्लीज ज्वाइन द केआईपी बिजनेस कम्युनिटीज। और हाँ, यदि आप अपना प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना चाहते हैं तो 1-to-1 आप हमारी टीम से कनेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स का असाइनमेंट भी बुक करा सकते हैं। लिमिटेड जो डिस्काउंटेड ऑफर है फॉर टुडे ओनली है, उसके बाद ये कस्टमाइज सर्विस रहता है, अकॉर्डिंगली आपको प्राइस पे करना होता है। ये आज आप अपना एसबीआर का असाइनमेंट बुक कराते हैं तो आपको ये डिस्काउंटेड ऑफर मिलेगा। Once again, thanks to all. Great thanks. Thank you very much. Thank you everyone. Namaskar.